Fine, fine. So yeah, so recording has been started. Hi team, good evening. A warm welcome to all of you. This is Ajay Shankar, and I'm having some 15 years of experience in backend and front end, both kind of technologies, even database as well. So my career is well balanced between database, backend coding like Java, .NET, right, PHP, that kind of backend, Node, and front end as well, where we have React, React.js, AngularJS, Vue.js, then your Knockout.js, Kendo UI, JavaScript, jQuery, right, Karma, Jasmine, Protector. There's so many endless lists, right? So I have updated on some 30, 35 technologies, including all latest with AWS, the latest one, right? So right now I'm an architect in a company, in a multinational company. Previous to that, I have worked in companies like Dell, Deloitte, UST Global, NIT Technologies, HCL. So overall with company, and if you count, clients also. So currently I'm working with my 12th or 13th client, if I'm not wrong, right? So I have pretty much all the exposure of this IT industry. Being in this industry from past 15 years, I have seen almost all kind of teams, resources, right, situations, technologies. Let's talk about technology. So seen all kind of technology. So I am from the background where we had a huge fan following of .NET and Java, and from there I have seen people shifting from backend coding or backend programming or server side programming to front end. Okay, so now let's straight away talk about the technology. Correct. So if someone is saying, hey, there is one new technology in the market, let's do a course of it. Okay. Someone is saying, hey, this is technology, this is the cutting edge technology. Correct. You should do this one. Learn this, and it'll be fruitful for you. Okay. Someone says something, someone says something. My question is, if anyone is saying anything to you, which means if someone is suggesting you, okay, do this technology or do that technology, should that be enough for you guys to pick a technology? I mean, to pick a course? Because your time is very crucial and very important. It should not be invested like this. Correct. If I'm saying, hey, go ahead, update yourself in mean, so shouldn't, I mean, you should be asking me a question, why I should go ahead with the mean, why I should go ahead with the mean, why not let's say C++, why not PHP, why not something else, or why not only with the college course curriculum? I mean, why I need to work in this latest technology? What is the benefit I'm going to get? Correct. In short, you should have the complete understanding, right, that why exactly you are learning. This why part is very important in your life. Okay, I'll not go into the lecture mode and tell you what, why, and how. Correct. But I'll tell you the practical scenario. Okay, I'll try to explain from the practical scenario why exactly you need a new technology, why exactly you need to upgrade yourself in new technology. Okay, let's straight away come to the point. Let's not waste time or invest time in creating a platform. Let's straight away come to the point. Why new technology? Why not the existing one? Okay, we'll quickly compare. It's a 5-minute exercise. Let's quickly compare both the part. I mean, the older technologies, I should not say older, but legacy technologies, and the new one. Okay, and let's see from all perspective. Then you will understand why new, why not old. Okay, or why not legacy. Okay, talk about PHP. So you all know PHP, C++, Java, .NET. Have you all heard about these technologies, legacy technologies? I mean, no one can touch these technologies. Touch in the sense means they will never be out of the market anytime. So these legacy application will be there, and were there, are there, and will be there. So are you guys aware about these technologies? Do you know about these technologies? Have you heard about it? If not worked, you have studied C++. Am I right? You have studied C++. You have heard about PHP. You have heard about .NET, Java. Correct. So these are your legacy technologies. Now the question is, these legacy technologies, right, are not generating that much revenue in the market. What I'm trying to say is, as of now, the all new projects in the market, the all new the business which is coming in the market, it's coming in the
in the new technologies or latest technologies or cutting edge technologies. Correct? Can you guys tell me few of the names of cutting edge technologies which are there in the market? Any one of you? You can unmute yourself and you can speak. Just tell me the list of new technologies what is there in the market. Except mean. Mean I told you, but except mean, what are the new technologies do you see in the market? Which is there? New one. Apart from this .NET, Java, PHP, C, C++. Akash, since you are in my top list, so can you unmute yourself and tell me few of it? Django framework. Which framework? Django framework. Django framework. Okay. Then we have okay. Ayushi, can you unmute yourself and tell me any one technology? So Python cloud computing. Python cloud computing. Good. Very good. Very nice attempt. Yes. Big data. Yes. Wait. Let other also speak. If you only speak about all the technologies, what other will speak? But good. Very good. Okay. Anyone else? Now I'll not ask for the names. Can anyone else speak about new technologies hot in the market? AI, ML. AI, ML. AI is artificial intelligence. ML is machine learning. Be specific. Yes. What else? Swift and React. Which React and Swift. Okay. Coming Swift is not that much in the market, but yes, okay, we can count it. But React is yes. Okay. What else? Julia programming language. Which one? Julia. Okay. Anyone from the DB side? DB side? EMPL database. Which one? EMPL. Why EMPL? Okay. Any specific name of the DB? Okay, I'll give you a hint. So far you heard about RDBMS, right? RDBMS, Relational Database Management System, correct? Correct. So do you know any new DB which is not RDBMS or which is NoSQL? I have given you the hint also. Anyone? Anyone? Sir, MongoDB. Absolutely correct. One more DB. One more. Apart from MongoDB. Firebase Cloud, Google जो support करता है. Firebase Cloud, okay, Google support करता है. Correct. Firebase में we create mobile apps. Absolutely right. Okay. Who else? One more DB is there, which is new and very hot in the market. PostgreSDB. Okay. So do you know in which technology all the Google product has been designed or is been designing or will be designed? Idea है Google basically किस technology में अपनी application बनाता है Google? Java and Python. Apart from Java and Python? फिलहाल उसका डार्ट फ्लटर चल रहा है सर. उसका डार्ट चल रहा है. उसने what do you call it, नया टूल निकाला है मोबाइल ऐप बनाने के लिए. फ्लटर. या करेक्ट. इससे मोबाइल ऐप बनती है. Yes, sir. Angular, you forgot Angular? You guys forgot Angular? 90% of the Fortune 500 companies, 90% of Fortune 500 companies and all startups, correct? All startups, whatever technology they use, but they will be having their project in Angular. They are having their project in Angular. मतलब वो Angular तो use करेंगे, right? आपका पूरा word इस time पे Angular पर है. You know that? Angular is taking off like anything. Okay? आपका यूरोपियन वर्ड, यूरोपियन मार्केट आपकी रिएक्ट से भरी हुई है. यूरोपियन अरेबियन मार्केट जो है दे प्रेफर रिएक्ट जेएस. होल वर्ल्ड प्रेफर एंगुलर जेएस. एंगुलर आपका गूगल का प्रोडक्ट है. रिएक्ट आपका किसका प्रोडक्ट है? एनीवन? फेसबुक का. करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. फेसबुक का. करेक्ट. सो आई मीन if I conclude this 5-minute exercise. Sorry to interrupt you, sir. Yeah. 6B chat जो अभी क्वेश्चन क्या था, प्लीज रीनेम.
6BZ कोई नाम आ रहा है, उसको अपना ओरिजिनल नेम कर लीजिए। Okay, I'll allow to rename. Yeah, please rename. क्योंकि सर लास्ट में क्या होगा, जब आपका फिनिश होने वाला होगा मैं स्नैपशॉट लूंगा, I know, तो I आई understood. वांट द नेम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ऑन द स्क्रीन। Sure. This, yeah, 6BZ, please rename yourself, please. Yeah, let him rename, and if sir, if with your permission, if not able to rename, then I need to remove it, and you know, रिमूव करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, वो तो अभी उन्होंने जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वही थे, कोई नहीं सर, कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अगर मैं इस एक्सरसाइज को कंक्लूड करूं, सो यू गाइज आर ऑलरेडी well aware of the new technologies. That is the best part about it. Okay, I like this part. You already know about the new technologies. Good. Now the question arises, like, do I need to learn all the new technologies? Because ये तो बहुत लंबी list है. It's a list of around 10 plus at least technologies. ये 10-12 के आसपास we have new technologies. Are we going to learn all of them? Is it required to learn all of them as of now for you guys? As of now, I mean, for me, I have the knowledge of all these because I have an experience of 15 years working with different projects, and with project requirement I got to know, okay, for this project I need to learn this technology, for that project I need to learn that technology, right? So मुझे project के हिसाब से अपने आप को update करना पड़ा. But for you, is it required to learn all in one shot? Is it required? Yes or no? Is it required? All? Like Python भी कर लो, machine learning भी कर लो, artificial intelligence भी कर लो, then Angular भी हो जाए, Vue.js भी हो जाए, React.js भी हो जाए, MongoDB भी हो जाए, Node.js भी हो जाए, right? नहीं, correct? What you need to do is you need to work on few technologies, or I should say only one. As of now, only one, which will give you an immediate shoot up in your career. क्योंकि अभी क्या सीन है, अब मैं एक और 5 minutes की एक्सरसाइज आपके सामने रखता हूँ. Just 5 minute example, okay? Just 5 minutes, not a lengthy one. So right now, what is happening in the market is, for freshers, the door of opportunity is getting closer and closer. Guys, I will request you, please switch off your video. It will increase your it will hamper your bandwidth, and again you will not be able to hear me. Okay, so coming back to the point, abhi kya ho raha hai right now? What is the market is? Market is getting, the door of the opportunity is getting the opportunity is getting narrowed down for the freshers. Freshers means the college students. Why? Because of this COVID-19, the companies are not having that much, what do you call it, time, not money. They have ample amount of money. They have ample amount of project. बहुत project है companies के पास. जो layoff चल भी रहे हैं, जो सुना भी होगा आपने layoff का, वो सिर्फ US में चल रहे हैं. हमारे यहाँ कोई layoff नहीं है. कोई किसी तरह की project की कमी नहीं है. There are lot of projects already there, running, will come. In IT, there is no recession. Correct? Only problem what we are facing, or what we are going to face for next 6 months, 1 year, 1.5 year is, ये जो delay हुआ है 4-5 months का, इसमें freshers का जो opening door था, वो close हो गया, कम होता जा रहा है. And by the time another 2-3 months भी अगर ये lockdown ऐसे चला, so ये और close हो जाएगा. Now the question is, for you need to remove this tag called fresher, or called college student, or let's say fresh recruits. अब वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कैसे करोगे? If you learn a latest cutting edge technology, right? Latest means कोई एक latest पकड़ लो, सब पे जाने की जरूरत नहीं है. You don't need to go to each and every technology and learn it. Don't do this stupidity. It will be a suicide mission. Trust me. Okay. So pick any one. So here I am suggesting, this means tag. इसका benefit क्या है? Now come to why part. Okay. Now in this exercise, we'll see the why part. Why part, in the why part, you will understand why I should learn mean only. There are others also. Why only mean? जब आप mean stack करते हो, तो इसके अंदर आपका पूरा full stack development आता है. Okay. I will map everything to this. Okay. Just be patient, right? And listen to me carefully. Okay. Just focus. तो अभी हमारा mean stack में क्या है? Mean stack is, M stands for MongoDB, मतलब NoSQL database है. E stands for Express.js, मतलब सारा का सारा आपका जो backend code है, all your programming, all your backend code, APIs you will do in Express.js. A stands for AngularJS, all your front-end programming will be there
UI programming will be there in Angular, correct? N stands for Node.js, means your entire server, right, will be handled by a node. Node will be behaving like your server. So hua kya? By having this mean stack, you have done a full stack development, correct? By learning this mean stack, you have done a full stack development. Full stack मतलब आप DB की भी knowledge है आपको backend code की भी knowledge है, you have knowledge of front end programming, you have knowledge of node programming as well, right? Node means server programming. So you after learning this, or after working in this technology, you became a full stack developer. Now after learning this, correct, you will no longer be a fresher, क्योंकि आपने इस पे काम किया है, correct? अब मैं थोड़ा सा contradictory point बताता हूँ. Now the question is, there's two way of learning. There is two way of learning. Okay, one is you learn like a course, okay, mean stack course, and उसको आप पढ़ोगे, sample कोई sample project बनाओगे. Sample project means a simple short project जिसमें maybe inventory management, library management आपने user या employee management बना दिया, या maybe you will be doing let's say what do you call it, hospital management at the max, correct? ये इसी तरह के project college में चलते हैं, correct? That is the kind of project you guys or college students basically do, and which is good because उनका इतना scope नहीं होता है. They have to just show as a proof of concept that they have studied, let's say Java or .NET or any language, and they are basically preparing a project out of it. But that will not make you an IT expert or a skilled resource. Okay, so second way of learning क्या है? What is the second way of learning? Is take a live project. When I say live project, means take a project, actual project, client-based project, right? So take a project and then basically apply the technology on the project, correct? I will talk about the project also, which I want that we all should together do it. Okay, so I'll tell you about the project as well, don't worry. But first we talk about this mean stack. Again, I'm not done with the why part. Okay, again I'm still around the why part, कि अभी आपको mean क्यों करना था? क्योंकि MongoDB है, Express है, Angular है, Node है. I will tell the specialty of each and every of it also, but let's just finish this conversation. So there's two way of learning. One way, as I told you, you take it as a course, read it, have some sample project and done. But that will not give you so many things. You will ask me, that will give us the learning. Yes, you will learn it, but what it will not give you, let me just tell you, it will not give you confidence, because you have just learned it, you have not implemented it. It will not give you the way how we should do error handling. That's the best thing a programmer can have in his life. जितने ज़्यादा errors आते हैं program में, उतनी ही ज़्यादा learning होती है, उतना ही ज़्यादा confidence आता है. So what you will not be getting is the errors. Okay. So first is confidence, second is error handling, third pressure, right? एक course को learn करना और उसके अंदर एक sample application बनाना, इसमें कोई pressure नहीं है. So you can do it very easily, आराम से. बाद में करेंगे, कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे. So that is not a good learning, or at least you will not get all these things. Okay. Fourth is knowledge. By learning, you can learn it, but knowledge only will come when you explore it. Correct? आप उसमें basic में तो चलो आपको बात बन जाएगी. I mean, you will be able to get the basics of any course, correct, or any technology. But जब आप उसको explore करते हो, मतलब जब आप उसमें एक project बनाते हो, actual project बनाते हो, जब उसको explore करते हो, then you get the real time learning. Then you get the real time learning. करेक्ट? आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि इस टेक्नोलॉजी का डेप्थ क्या है, ब्रेथ क्या है, डेप्थ क्या है, राइट? सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ जस्ट लर्निंग इट लाइक अ कोर्स. ओके, तभी जब हम कॉलेज से जब हम आईटी में शिफ्ट होते हैं, सो वी सी अ इंटायरली डिफरेंट वर्ड, वी सी अ टोटली अ डिफरेंट न्यू वर्ड, राइट? मे बी कई लोगों ने कॉलेज के टाइम पे .NET किया होता है, जावा में प्रोजेक्ट बनाया होता है, but when they actually go into a company and start working on .NET and Java, I mean, then they see, hey, it's a totally different word. The Java and .NET what we know, correct? This Java and .NET where we are working is totally different. The only reason why is because in college time, when you do a project, you do it very lightly, right? And lightly in the sense means the scope of the project.
I don't say, whatever you've done is useless or waste. No. What I'm saying is the one which you have done, the project जो आपने किए हुए हैं, the project you have done in .NET, Java, C, C++, PHP, whatever language, वो उनका scope इतना नहीं है कि you can compete with the IT world, right? Now the question is, you have to upgrade yourself and need to compete in the IT world. Correct? आपको latest technologies तो करनी ही पड़ेंगी. There is no other option. As I told you, Java, .NET, legacy applications, legacy technologies, इनका scope market में job wise freshers के लिए नहीं है. Freshers के लिए नहीं है, right? Because already इतना supply है. अगर demand है, तो supply उससे ज़्यादा है. तो वो freshers को क्यों लेंगे? They already have experienced crowd, experienced folks, right? Experienced engineers. So जैसे ही Java .NET की application की opening निकलती है या PHP की निकलती है, किसी भी legacy technology की निकलती है, right? So ये जो experienced होते हैं, वो ही वहाँ पर recruit हो जाते हैं. तो freshers तक बात ही नहीं आती है. To be very frank, correct? तो freshers कैसे entry लेंगे? So freshers basically कैसे entry लेंगे IT industry में, correct? So best chance what you have right now, the best chance is all these cutting edge technologies. Why? Because they are new, first. Second, lot of projects are there in these technologies only. The companies are shifting from legacy technologies to latest technologies, so they need manpower. जैसे पुरानी एप्लीकेशन को जावा में बनी हुई है, उसको एंगुलर में कन्वर्ट करना है. अब उस legacy एप्लीकेशन को कन्वर्ट करने के लिए उनको कम से कम, if I'm not wrong, 20 to 25 resources चाहिए होंगे, correct? So which means they have an opening of 25 resources of Angular. ये नई टेक्नोलॉजीज जो है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है, पूरी मार्केट इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है right now. The whole market has been captured by these latest technologies like Angular, Vue.js, React.js, MeanStack, MERNStack, AWS Cloud. तो सारे प्रोजेक्ट जो बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट हो गए हैं या हो रहे हैं. तो ये द ग्राफ ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इज शूटिंग, आई मीन टेकिंग ऑफ. तो ये अभी सैचुरेशन पॉइंट पे भी नहीं आया. जैसे लीगेसी टेक्नोलॉजीज जैसे सैचुरेशन पॉइंट पे, लाइक C, C++, देयर इज नो ओपनिंग फॉर C++. Although we work in few projects in C, C++ only, but still there is no opening. .NET Java, there is no opening for freshers. Although we work in .NET Java at backend, but still there is no opening for freshers. Very rare, correct? क्योंकि इनका saturation point आ गया है. इनकी demand अगर 5 है, तो at least 20 supply है. But ये latest technologies जो हैं, correct? इनका ग्राफ अभी शूटिंग है. तो अगर डिमांड अगर let's say 25 रिसोर्सेज की है, करेक्ट, तो उस हिसाब से सप्लाई नहीं है. तो दे if you upgrade yourself in these technologies, so you will get good pay. तो क्यों जरूरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना? Let's see in the points. First, they are new, correct? They are taking off. The whole market has been shifted to these new technologies, correct? Good package, quick opening, swift opening, correct? Experience constraint nahi hai. Experience constraint means if any one of you have done a real-time project, any one of you if have done a real-time project, correct? आपने 4, 5, 6 महीने काम किया है, 3, 4 महीने, 5 महीने काम किया है किसी लाइव प्रोजेक्ट पे या रियल टाइम प्रोजेक्ट पे, क्लाइंट के लिए बनाया, which you can prove, which you can show to HR, you will get a call immediately. You will get a call, correct? So ये 3-4 points हैं जिनकी वजह से, because of that you should upgrade yourself in these new technologies. So सबसे बड़ा reason, सबसे 2 बड़े main reason तो यही है. First, job. Second, this is the future, correct? इन्हीं टेक्नोलॉजीज में आप आगे काम करोगे, इन्हीं टेक्नोलॉजीज में आप आगे ग्रो करोगे. ठीक है, एक 2-3 एग्जांपल्स देते हैं just to prove my point. पहले जैसे हम सुनते थे, we used to hear server. I guess very common word, server. Correct team? Say yes or no? Server बहुत common word है. Site कहाँ hosted है? Website is hosted at server. Yes, where is the data? Data is at server. Where is our cloud? Where is our school application? Let's say server. Correct? All the data is at server. Everything is server. But from last 5 years, and specifically, precisely from last 2 years, what is the name you are getting nowadays?
इंस्टेड ऑफ सर्वर? क्लाउड. क्लाउड, करेक्ट, क्लाउड. आप सुनते सब कुछ हो. I seriously appreciate this part. You know everything, correct? But have you ever wondered why? Why? कभी सोचा है क्यों शिफ्ट हो रहे हैं सर्वर से क्लाउड पे? क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्यों? Why? Because you are learning server. Market is going in cloud. So are you going in downstream or are you going in upstream? So tell me guys, should you go in upstream? मतलब मार्केट के अगेंस्ट जाना है या मार्केट के साथ जाना है? When you yourself is saying server, sorry, cloud, which means you know the whole market is shifting to cloud. अब cloud में कौन कौन आ गया? AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, correct? Dell भी इसमें आ रहा है. You know, just as a matter of some months maybe you will see Dell also will be coming in cloud, because backend support तो in cloud companies को Dell दे ही रहा है. Dell also you will see Dell Cloud Computing. IBM बैकग्राउंड में IBM है, करेक्ट? अगर फेस 3 है तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी Dell और IBM चल रहा है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक जस्ट एग्जांपल है. इट्स अ स्विच बेसिकली. Market is going from legacy technologies to the latest one, AWS. अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते, इतना टाइम भी नहीं होगा. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं. why AWS, क्विकली, जल्दी से. आप लोगों ने नाम सुना है AWS, आपको पता भी है कि मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम सर्वर टू AWS. then can you guys tell me why AWS is so important, so hot in the market? Lot of projects are there. No, that's not a reason. For basic use, 1 year free. No. Lot of server selling companies, they are giving, in 2000 they are giving the entire server. What are you saying? No. Anyone else? सर सिक्योर होता है. सिक्योर होता है, ओके. आई कैन बाय दैट पॉइंट, बहुत सारी API प्रोवाइड करता है. सर ये हमें सर्वर भी सिक्योर होता है. वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कराता है. ओके. एज का डेटाबेस प्रोवाइड कराता है. डिफरेंट सर्वर्स पे वर्क कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है. और हम इसमें अपने लोकल API, सबनेट मास्क, ये सब हम क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं. और उसे एज अ लोकल सर्वर भी हम रन कर सकते हैं. चलो, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके मैं आपको 2 मेन रीजन बताता हूँ, 2-3 मेन रीजन बताता हूँ. ऑल्दो यू ऑल आर क्लोज टू द आंसर. सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव है. सबसे फर्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव है. चीप नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट इफेक्टिव मींस जितना आप यूज करोगे, जितनी सर्विसेज यूज करोगे, उतना ही पैसा पे करना है, करेक्ट? सो कंपनीज के लिए बहुत चीप है, मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, करेक्ट? जैसे सर्विस बेस्ड है, मुझे आज तक सर्वर चाहिए, मैं आज तक पे कर रहा हूं, कल मुझे नहीं चाहिए, आई स्टॉप द सर्विसेज, डन, नो बिलिंग, नथिंग. कोई बैगेज नहीं है कि मुझे 3 साल के लिए लेना पड़ेगा. ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन. आई गेस यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्केलेबल है, ऑटो स्केलेबल है. यू वोंट बिलीव, जैसे IRCTC का एग्जांपल लेते हैं जल्दी से. IRCTC, आज IRCTC साइट कल ओपन हुई एंड पीपल से यू कैन बुक अ ट्रेन, करेक्ट, ओवर दैट साइट. एंड जैसे ही 4 बजे 4 PM साइट ओपन हुई, साइट हो गई डाउन. व्हाई? बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड हिटिंग दैट साइट. ये सिचुएशन आपकी AWS में पूरी जिंदगी कभी नहीं आएगी. व्हाई? बहुत सिंपल है. AWS बेसिकली ऑटो स्केलिंग पे वर्क करता है. मैं ये इस एग्जांपल के बाद इसको क्लोज करूंगा, बिकॉज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं AWS के. लेट्स नॉट स्ट्रेच इट, बट ये बहुत मेन है. आई थॉट आई शुड गिव दिस वन. ऑटो स्केलिंग है. जैसे इससे प्रीवियस कंपनी में, मैं गेमिंग कंपनी में काम करता था, जहां पर मिलियंस ऑफ ये यूरोपियन, ब्राजीलियन और ये वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के पास कोई काम नहीं होता था, सिर्फ गेम खेलते थे ऑनलाइन, गेम एंड गैम्बलिंग. तो हमारे पास हिट्स आती थी 1 मिनट के अंदर, लेट्स से 10,000 API कॉल्स, 10,000 in 1 minute, और sometime in some millisecond we used to reach like thousands of API calls. 1 सेकंड के अंदर thousands of API कॉल. नाउ पॉइंट इज, अगर ऐसा होगा तो हमारी एप्लीकेशन तो बैठ जाएगी. जैसे IRCTC कल बिल्कुल स्लो हो गई थी. ये बिल्कुल ऐसे ही है. जैसे एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं. एक प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है, उसका सिर्फ एक ही एंट्री गेट है.
एंड मैच हो रहा है किसका? इंडिया पाकिस्तान का. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? What is going to happen? Thousands and thousands of people are going to enter into the stadium. Correct? और सब क्या करेंगे? एक ही गेट से एंट्री करेंगे. उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? स्टक, डेडलॉक. बिकॉज सभी एक ही गेट से एंट्री कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेडलॉक. करेक्ट? People who are not on mute, kindly just put yourself on mute, please. Yeah, only unmute when you wanted to speak. You are open to speak though. ओके, सो सिचुएशन क्या आ गई कि डेडलॉक हो गया, स्टेडियम हो गया जैम पैक्ड नाउ, मतलब एंट्री पे ही सब स्टक हो गया. करेक्ट? एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है. आईआरसीटीसी की साइट पर कल एक साथ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिट्स पड़े. वो स्केलेबल नहीं थी तो एप्लीकेशन बैठ गई, क्योंकि सर्वर कैन नॉट हैंडल दीज मेनी रिक्वेस्ट एट वन टाइम. जैसे स्टेडियम में पुलिस, स्टेडियम स्टाफ, cricket board cannot handle that many crowd, correct, at one shot. वो भी एक ही गेट से मैनेज नहीं कर सकता. तो क्या देखा है आपने स्टेडियम में क्या होता है? इस क्राउड को सेग्रीगेट करने के लिए, बांटने के लिए क्या करते हैं क्राउड में, सॉरी क्या करते हैं स्टेडियम में? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक एंड यू कैन पुट इट ऑन द चैट आल्सो. हाउ कैन वी सारे गेट्स ओपन कर देते हैं. सबसे पहले मल्टीपल गेट्स बनाते हैं. करेक्ट? यस सर. सो सारे गेट से क्या कर रहे हैं? एक ही स्टेडियम में एंट्री हो रही है बट डिफरेंट डिफरेंट गेट से. तो क्या हुआ? एक गेट पर प्रेशर नहीं पड़ा. करेक्ट? दिस इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग. बट दिस इज नॉट कॉल्ड ऑटो स्केलिंग. ये तो फिक्स है. अगर 7 गेट्स है तो 7 ही होंगे. करेक्ट? क्राउड अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो 7 गेट भी फेल हो जाएंगे. जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बहुत क्राउड आ गया, जैम पैक्ड है, तो 7 गेट्स भी फेल हो जाएंगे. बट AWS में ऐसा कभी नहीं होता. अगर IRCTC की साइट AWS पे होस्टेड है, क्लाउड पे होस्टेड होगी, करेक्ट, या AWS या एनी क्लाउड सॉल्यूशन पे, क्लाउड पे होस्ट होगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा. क्लाउड कंप्यूटिंग, द बेस्ट पार्ट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑटो स्केलिंग. मतलब अगर आपके पास ज्यादा सपोज क्राउड है तो वो ऑटोमेटिकली क्राउड को, मतलब जो हिट्स हैं उनको सेग्रीगेट कर देता है, उनको सेग्रीगेट कर देता है. हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म कॉल्ड लोड बैलेंसर? सर्वर के ऊपर लगता है लोड बैलेंसर. सो लोड बैलेंसर बेसिकली सारे लोड को बैलेंस कर देता है. मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 हिट्स एक सर्वर पर, उसके बाद जो 10,000 हिट्स आएंगी वो दूसरे सर्वर पर, फिर जो हिट्स आएंगी वो तीसरे सर्वर पर. करेक्ट? लाइक दिस वो पूरा बैलेंस कर देता है. ये काम, ये कोड भी हमें खुद लिखना पड़ता है सर्वर पर. टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोड भी हमें एज अ प्रोग्रामर खुद लिखना पड़ता है. बट इन AWS ये ऑटो स्केलिंग सर्विसेज ऑटोमेटिकली मिलती हैं. You just need to pay. That's it. Pay and you get auto scaling service, on demand. Virtual machines. किसने बोला था virtual machines? Absolutely correct. आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं चाहिए. You don't need any infrastructure. Means you don't need any expensive system. आप P4 से भी, just P4. कितने का आता है P4? 10,000 का? I guess इससे भी कम का आता है. एक P4 सिस्टम से भी आप अपनी कंपनी चला सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो. You just need to log into AWS virtual machine. And उस virtual machine में you make it, you decorate that machine or you add expensive things into that virtual machines and pay for it. Simple. But आपको खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे. सिक्योरिटी और APIs और ये तो है ही, मतलब ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट्स है. बट ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं AWS के. बट ये 2-3 मेन इंपॉर्टेंट थे जो मैं बता रहा था. So that is why companies are going or shifting towards that AWS. अब आते हैं अपने मीन पर स्पेसिफिकली. लास्ट 5 मिनट्स ऑन मीन. ओके, मैं एक करके सब डिफाइन करता हूं. MongoDB आपका, जब हमारे पास ऑलरेडी Oracle है, वी हैव Oracle, वी हैव SQL सर्वर, वी हैव RDBMS, different sort of RDBMS, then why we need MongoDB? Anyone knows the answer of it? Anyone? मुझे MongoDB क्यों चाहिए? जब मेरे पास RDBMS ऑलरेडी है, मेरे पास Oracle है, इतना बड़ा ब्रांड Oracle है, इतना बड़ा ब्रांड MS SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, मुझे MongoDB क्यों चाहिए? Anyone? Again, that is the thing I wanted to basically address. You know these things. You know what? You guys know what? What is there in the market? You know everything, but you don't know why. You don't know why. Correct? That is why you have not chosen any, or I should say, that is why you have not started going in that direction.
Like that is why you're not going, you've not started going in a right direction of which technology I should pick, because you don't know why. Once you know why, you will automatically jump on it. आप बोलोगे यही है जो मुझे करना है. Okay. तो किसी को पता है MongoDB? I guess Akash said unstructured. Astha said unstructured data. Okay. So is unstructured is a good thing or bad thing? I guess unstructured is not a good way of doing it, right? Okay, I'll not waste your time. डायनामिक क्वेरी को भी सर इजीली वर्क करता है सर. Again, my brother, why, how, why? डायनामिक क्वेरी को कैसे, मतलब क्या, ऐसा क्या होता है इसके अंदर? You're missing the main point. सर एक तरीके से जो हमारी डॉक्यूमेंट बेस्ड क्वेरी होती है ना, डॉक्यूमेंट बेस्ड क्वेरी, जो डीप क्वेरी जिसको हम बोलते हैं, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है अपने आप में, जो हम ओरेकल से या एसक्यूएल से नॉर्मली नहीं करा पाते, वो इससे इजीली हम करा सकते हैं. और ये आरडीबीएमएस से थोड़ा और एडवांस होता है सर, इस वजह से. 2 points. 1 minute. Hold on. 2 important points. RDBMS आपका Oracle SQL Server RDBMS ऐसा कुछ नहीं है जो RDBMS नहीं कर सकता. पहला पॉइंट, कभी भी ऐसा मत बोलना किसी के सामने. ओके, RDBMS आपका सब कुछ कर सकता है, सब कुछ. Now you understand, if RDBMS can do everything, then also people are dying to have their database in MongoDB. तो कुछ तो बात होगी इसमें, right? Let me I understood you all are towards the right answer, but let me give you a precise answer, right? Let me give you a precise solution, or exact line बताता हूँ technically. Okay, MongoDB का just pay 30 seconds. MongoDB सबसे पहले जो तुम लोगों ने मिस किया, MongoDB first of all is NoSQL. Okay, the best part about MongoDB is NoSQL. Maybe Astha was trying to say it's NoSQL. I mean, she wrote unstructured. Maybe what Astha is trying to say is it is NoSQL. By saying unstructured, maybe Astha want to say it is NoSQL. So ये NoSQL है. NoSQL मतलब SQL क्या है आपकी? Structured query language, correct? Structured query language मतलब आपका एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगी, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होंगे. ठीक है, आपकी क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी और नेम इज दिस, करेक्ट? तो आपकी क्वेरी सीधा का सीधा आपकी फायर होगी टेबल पर. टेबल में रोज कॉलम्स, करेक्ट? रोज फिल्टर होंगे, जो रो मैच कर जाएगी वो शो कर देगा. दैट्स हाउ SQL वर्क. That's how SQL work, correct? Yes or no? हेलो, यस सर. आपका SQL ऐसे ही वर्क करता है, करेक्ट? अब आते हैं MongoDB पे. MongoDB कहता है नो SQL. मुझे SQL पता ही नहीं है. नो SQL मीन्स नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो फिर डेटा कैसे सेव होगा? डेटा डॉक्यूमेंट में सेव होगा, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव होगा, करेक्ट? और डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा? डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा? एनीवन? What would be the structure of the data? JSON. Absolutely correct. It will be saved in JSON format. अब क्योंकि ये SQL नहीं है और क्योंकि ये डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रोज एंड कॉलम्स में सेव नहीं हो रहा है, ये एक तरह का फाइल सिस्टम है. I mean, not एक तरह का, in fact it's a document based approach, file system. So it is 1000 times faster than your SQL. क्योंकि आपको डेटा के लिए क्वेरी नहीं करना पड़ रहा है, आपको डेटा उठाना है. You have to pick the data which is saved in the object form. Which object type? JSON object. JSON object क्या है? Simple key value pair. Correct? JSON object क्या है? एक object structure है, एक उसकी key value which means properties value. Let's say property name value. In your context, student name one property name, value. Student ID value, student address value, student phone number value, and this whole is one object. Like this, if we have 1000 students in college, so we have 1000 simple objects. That's it. हर object के पास अपनी object ID है, so that uniquely identify हो जाए, right? और वो सारी 1000 objects एक document में save है, as a document save है, no database, no table, no rows, no columns. तो अब क्या है? अब मुझे query नहीं करना है. Now I don't need to query. I just need to pick
द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये 1000 टाइम्स फास्टर है। पहला इंपॉर्टेंस समझ में आया? फर्स्ट इंपॉर्टेंस अगेन एंडलेस है, इसके ऊपर पूरा दिन बोल सकते हैं, बट आई पुट फ्यू पॉइंट्स जो आप लोग जिसको आप लोग एड्रेस कर सको, जिसको आप लोग समझ सको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट? आई पॉइंट आउट ओनली 1 or 2। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये नो सीक्वल और क्या बेनिफिट है इसका? यस और नो? नो सीक्वल है मींस कोई क्वेरी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, एज ए डॉक्यूमेंट सेव होता है, करेक्ट? कोई क्वेरी फायर नहीं होती, सिर्फ डेटा को पिक करना होता है, ऑब्जेक्ट को पिक करना होता है। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां हमारे आरडीबीएमएस, वेयरएवर आरडीबीएमएस आर फेलिंग, ओके, आरडीबीएमएस इज सुपर ऑसम थिंग इन दिस होल वर्ल्ड ऑफ आईटी, करेक्ट? आपका आरडीबीएमएस से अच्छा सुंदर कोई चीज नहीं हो सकती, बट इट ऑल्सो गेट फेल्स जब इसकी ये एक एक्सटेंट तक पहुंच जाता है। Previously, again 30 seconds. Previously, we used to store the banking data, correct? Just for the sake of storing the data. कि भाई हमारे पास 1 TB डेटा है, तो 1 TB डेटा वो सेव है as a data. But now in today's era, our data in TBs and GBs are meant to be shared, correct? Not meant to be stored. आपका डेटा आज स्टोरेज के लिए नहीं है, शेयरिंग के लिए है। जैसे आपका कॉलेज का डेटा पूरा आप एज अ स्टूडेंट, आपका डेटा, करेक्ट, अब सिर्फ एक स्टूडेंट डेटाबेस नहीं है, वो कंपनीज को फ्लोट होना है। आगे आने वाले टाइम में एप्लीकेशंस बनेंगी, एपीआईज बनेंगी, मोबाइल ऐप्स बनेंगी, जिन पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स का, मे बी हो भी नहीं हो ऐसी एप्लीकेशन, जिन पर कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स का डेटा उन एप्स पे एक्सपोज करेंगे, और जो कंपनीज के एचआर हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्च करेंगे वहां पर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मे बी ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे अभी चल रहा हो या आने वाला हो, बट इफ यू सी करंट एरा, जैसे आप अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट देख लो, आप जब फेसबुक पे लॉग इन करते हो या रजिस्टर करते हो या जीमेल पे रजिस्टर करते हो, यू साइन अ बॉन्ड दैट दे कैन यूज योर डेटा एनीवेयर। डू यू नो दैट फैक्ट? आप जो इमेजेस या डेटा जो आप लोड करते हो, वो उन इमेजेस को, डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप जब रजिस्टर करते हो, यू साइन दैट, यू से आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इज सबमिट दैट वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन इज दे कैन यूज योर पिक्चर एनीवेयर। ओके, लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रेट और से ओवर हियर इज कि आपका डेटा आज के टाइम में, स्पेशली पिछले 10 साल में एंड स्पेशली लास्ट 5 साल में, what is happening is your data is not meant to be stored, your data meant to be shared with others. तो जब शेयरिंग होती है तो कैसे शेयरिंग होती है? शेयरिंग मतलब क्या हुआ? मेरे पास डेटा है और लोग क्वेरी कर रहे हैं, मैं उनको आंसर कर रहा हूं। लोग क्वेरी कर रहे हैं मतलब मैं उनको डेटा दे रहा हूं। मैं मतलब लेट्स से फेसबुक, लेट्स से जीमेल, लेट्स से एनी ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट? आज आपके पास क्या है? मोबाइल एप्स है। मोबाइल एप्स के थ्रू आप पिक्चर बुक कर लेते हो, आप फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हो, आप ट्रेन टिकट बुक कर लेते हो, करेक्ट? सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस मार्केट में और भी हैं, वो भी सेम एपीआई यूज करती हैं और सेम जैसे बस बुक करना, फ्लाइट बुक करना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ऐप सिर्फ एक ही तरह की फ्लाइट बुक करती है, नो, राइट? सो यू हैव एप्लीकेशन लाइक यात्रा, मेक माई ट्रिप, करेक्ट, एंड व्हाट एल्स, क्लियर ट्रिप, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, पेटीएम, जो सब आपकी फ्लाइट्स बुक करती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लाइट्स बुक करती हैं तो मतलब सबके पास जो है एविएशन कंपनीज जो हैं, जो फ्लाइट कंपनीज हैं, उनका डेटाबेस है? नहीं, करेक्ट, उनके पास डेटाबेस तो नहीं है उनका। तो वो एपीआईज के थ्रू डेटाबेस को हिट करती हैं। मतलब हर वक्त, एवरी नाउ एंड देन, आपकी एपीआईज डेटा को प्रिक करती हैं, राइट? डेटा को पिंच करती हैं एंड बोलती हैं गिव मी द डेटा। सो आपका डेटा अब आराम से सेटल नहीं है जैसे पहले था। हर वक्त डेटा पे क्वेरी चलती है, हर वक्त डेटा पे सर्च चलता है, करेक्ट? लास्ट एग्जांपल बैंक का। पहले बैंकिंग कैसे होती थी? यू गो टू बैंक एंड से आई नीड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम माय अकाउंट टू दिस गाय, ओके, और आई नीड टू गो फॉर अ चेक बुक, और आई नीड टू ट्रांसफर माय बैंक अकाउंट, और आई नीड टू ओपन अ न्यू अकाउंट, करेक्ट? आज ये सब चीजें आपकी एटीएम, मोबाइल ऐप, वेब एप्लीकेशन, इन सब से होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि पीछे कौन काम करता है? एपीआई। पीछे कौन काम करता है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपका एक इंटरफेस काम करता है जो आपके फ्रंट एंड
और बैकएंड डेटाबेस के बीच में होता है, मतलब एपीआई इज काइंड ऑफ मिडिल लेयर यू कैन से, जो आपके डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच में होता है, करेक्ट। तो आप एपीआई के थ्रू हर वक्त डेटाबेस को परेशान करते हो, हर वक्त डेटाबेस को क्वेरी करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नाउ यहां पर आके आपका आरडीबीएमएस एक टाइम के बाद फेल हो जाता है, बिकॉज आरडीबीएमएस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच मींस अगर मुझे एक टेबल से डेटा चाहिए तो उसका आधा डेटा इस टेबल में पड़ा है, एंड ओके फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, लेट्स से आई हैव 1 लाख स्टूडेंट इन द डेटाबेस, आई नीड स्टूडेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट इन वन टेबल आई हैव जस्ट स्टूडेंट डेमोग्राफिक, मतलब स्टूडेंट का नाम, एज, मे बी हाइट, वेट, दैट्स इट। स्टूडेंट की हॉबीज स्टूडेंट हॉबी टेबल में है, स्टूडेंट का एड्रेस स्टूडेंट एड्रेस टेबल में है, करेक्ट। स्टूडेंट की मार्क्स इंफॉर्मेशन स्टूडेंट मार्क्स टेबल में है। तो अभी सिंपल एप्लीकेशन में ही हमारी 5 टेबल बन गई, यस और नो। एक स्टूडेंट डेमोग्राफिक टेबल, एक स्टूडेंट मार्क्स टेबल, स्टूडेंट एड्रेस टेबल, student what do you call it, what else was there, like the student hobby table, like this student की 4-5 tables बन गई जो आपस में interrelated है, correct। तो अब अगर 1 million data है, 1 million data, and I am searching for student whose name is Ajay, correct। तो मे बी अजय 5 हो डेटाबेस के अंदर, आउट ऑफ 1 million मे बी 5 अजय हो, बट टू सर्च दोस 5 अजय, the execution pointer has to go through or iterate through each and every record. Do you agree or not? आप अपने मार्क्स कॉलेज की बोर्ड पे कैसे देखते हो? आपकी मार्कशीट लगी होती है पास और फेल की, तो आप कैसे देखते हो? आपके कॉलेज वॉल पे लगी होती है, और आप कैसे करते हो? अपना नाम ढूंढते हो, अजय 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 अजय, अरे ये मिल गया अजय, फेल्ड, करेक्ट, और पास और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आप सोचो वो 40-50-100 स्टूडेंट की लिस्ट में ही आपको ढूंढने में कितना टाइम लग जाता है, या टाइम लगता है। तो नाउ जस्ट इमेजिन आपको अजय नाम के स्टूडेंट्स ढूंढने हैं 1 million के अंदर और 10,000 के अंदर फॉर दैट मैटर, कितना स्लो होगा ये प्रोसेस, क्योंकि जब वो अजय ढूंढेगा, एक टेबल के अंदर ढूंढेगा, वो उसके पीछे जब वो रिकॉर्ड पुल करेगा तो वो 5 और टेबल से भी डेटा उठाएगा। इट विल टेक डेटा फ्रॉम 5 other tables also, because all the tables are related to each other. It's a relational database management system, all are interrelated. तो मैं एक टेबल को हिट करूंगा तो वो दूसरी टेबल को हिट करेगी, तीसरी टेबल को भी हिट करेगी, फोर्थ टेबल को भी हिट करेगी, और 5 टेबल को भी हिट करेगी, और ज्वाइन के थ्रू कंप्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखाएगी। इस प्रोसेस में लगता है टाइम, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली सर्चिंग इन द डीबीज विच वेयर द डेटा इज इन टीबीज, जीबीज। जब बैंकिंग डोमेन का सोचो, बैंकिंग डोमेन का, जहां मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का रिकॉर्ड होता है, उसमें सर्च करना कितना मुश्किल होता है। सो at this stage your RDBMS get fails. So jitna bhi view only, so what is the solution is not to knock your RDBMS down. Solution ye nahi RDBMS ko nikal do, फेंक दो बाहर, no, you cannot do that and you should not be doing it and you will not be doing it in future. का solution क्या है? व्यू के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म करो जिसमें इतना ज्यादा क्वेरी नहीं करना पड़े, करेक्ट। तो व्यू ओनली के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है MongoDB का। सो वी पुट MongoDB इन फ्रंट ऑफ आवर RDBMS. व्हाट हैपन इज RDBMS कीप फीडिंग द MongoDB. बहुत सिंपल है, RDBMS आपका MongoDB को फीड करता रहता है और MongoDB के पास आपका सारा का सारा डेटा होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम सर्च करते हैं किसी चीज को तो हम MongoDB को हिट कर रहे हैं, MongoDB इमीडिएटली आपको रिप्लाई देता है वेरी फास्ट, बिकॉज MongoDB में डेटा जो है वो RDBMS वे में नहीं सेव्ड है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव्ड है, करेक्ट। देयर इज नो रिलेशनल टेबल देयर, राइट, देयर इज नो रिलेशनल डेटाबेस देयर, कोई रिलेशनल डेटाबेस है ही नहीं MongoDB के अंदर। सिंपल डेटाबेस, सिंपल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से हम लोग फेच कर लेते हैं। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? डिड यू गेट दिस वन और नॉट? व्हाई MongoDB? Yes sir. करेक्ट। इसका कोई रियल टाइम एग्जांपल दे सकता है कोई क्विकली? एनी रियल टाइम एग्जांपल फटाफट से, एनी रियल टाइम एग्जांपल where you see, I mean, which you can say this can be a MongoDB. In IRCTC?
IRCTC में क्या, जैसे जिससे हम ट्रेन फाइंड करते हैं सीट्स, तो वो एकदम फैच करके दिखा देता है इस डेट का। फेसबुक। ब्रिलियंट, सुपर, अरे तुम लोग तो फेसबुक ऑलरेडी जीनियस हो यार। ओके, so if someone tell you can you design a DB of IRCTC, now can you say you can? नो। Come on, at least try तो कर सकते हो यार। यस सर। जब तुम्हें इतना पता है, see again what I'm saying, confidence, how you get confidence when you actually work on it, but जब initially pointers तुमको पता है, correct, तो नॉलेज लेने में कितना टाइम लगेगा? मेरी बस ट्राई टू गेट माय पॉइंट। हाउ पार्ट सबसे बाद में आता है, हाउ पार्ट सबसे बाद में आता है, पहले आता है व्हाट एंड व्हाई, ये क्या है और क्यों है। इफ यू नो दिस मच पार्ट, हाउ पार्ट के लिए तो पूरा गूगल पड़ा हुआ है यार। हाउ पार्ट में थोड़ा कोई मुश्किल है। कितने लोगों ने अपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, कितने लोगों ने एग्जैक्ट कोड तक लिखा हुआ है। तो हाउ की कॉस्ट नहीं है मार्केट में, हाउ की कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तुम्हारे ब्रेन की है, कॉस्ट तुम्हारे दिमाग की है। डू यू नो व्हाट और डू यू नो व्हाई, करेक्ट? देन इफ यू नो बोथ द थिंग्स, ऑटोमेटिकली यू विल सी हाउ, बिकॉज अल्टीमेटली तुम पहुंच जाओगे कैसे करना है। पहले देखो सही करना क्या है, राइट? तो अगर कोई बोले IRCTC का DB डिजाइन करना है, करोगे? ब्रिलियंट। एक और एग्जांपल दे सकते हो? एक किसी और ने दिया फेसबुक का, बहुत बढ़िया। फेसबुक मिलियंस ऑफ डेटा, मतलब फेसबुक के अंदर हमेशा तुम्हारा जो है व्यू ओनली चलता है। कहीं से पॉपअप आ रहा है, कहीं से एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कहीं से पोस्ट आ रही है, राइट? तो अच्छा ऑप्शन है MongoDB। और कोई साइट आजकल बहुत चल रही है आजकल साइट्स? एनी करंट वेब एप्लीकेशन एग्जांपल? एनी ई-कॉमर्स साइट एप्लीकेशन? चलो हिंट भी दे दिया, हिंट भी दे दिया। एनी ई-कॉमर्स साइट एप्लीकेशन? व्हाट? फ्लिपकार्ट, अमेज़न और नेटफ्लिक्स। फ्लिपकार्ट के पास तो कौन सा डेटाबेस है यार, उसके पास तो इतने लोग है ही नहीं। Amazon, talk about Amazon में सबसे, या Netflix, correct. I was actually asking this one, I was actually expecting this one from your side. Netflix, दोनों पर आते हैं जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड्स। Netflix के अंदर इतनी ज्यादा मूवीज हैं, अगर वो RDBMS के वे पे चलेगा, डू यू थिंक वो इतना फास्ट होगा? तुम स्क्रॉल करते हो लोड हो जाती हैं, स्क्रॉल करते हो लोड हो जाती हैं, करेक्ट? यस सर। तो RDBMS से तो बात ही नहीं बन सकती, क्योंकि हर वक्त उस पर क्वेरी चलती है, हर वक्त। कभी sometime in the peak hours, sometime non peak hours. अच्छा, just imagine peak hours. Peak hours means let's say late night और evening time, करेक्ट? जब लोग आराम से बैठे होते हैं और पिक्चर देखना पसंद करते हैं, करेक्ट? और वीकेंड्स पे वो लोग कैसे हैंडल करते होंगे? कैन यू इमेजिन कैसे हैंडल करते होंगे? या क्या उन्होंने स्ट्रक्चर सोचा होगा, कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा? क्योंकि हर बार पिक्चर को सर्च करने के लिए वापस RDBMS में जाना और बोलना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर मूवी नेम इज एवेंजर, राइट? यस। और लेट्स से एक्शन मूवी वेयर मूवी टाइप इज एक्शन। जस्ट इमेजिन मूवी टाइप एक्शन। उनके पास तो मिलियंस ऑफ मूवीज होंगी एक्शन की, जिनका जॉनर जो है एक्शन होगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो व्यू ओनली पार्ट है, सेम थिंग ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। आप Amazon में क्या करते हो? व्हाट बेसिकली यू डू इन Amazon? डू यू परचेज everywhere in Amazon? No. What you do? You mostly search. और Amazon भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। तुम सर्च करते हो, let's say मोबाइल फोन, वो तुम्हें और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक भी चिपका देता है साइट पे, करेक्ट? प्रोडक्ट्स यू माइट लाइक, देखो कितना फास्ट है। तुमने अभी सर्च किया और अभी उसने चिपका दिया प्रोडक्ट्स यू माइट लाइक, वो भी डायनेमिकली। कैसे किया होगा उसने? अगर SQL से ही हर बार क्वेरी निकालेगा, वो तो हो गया काम उसका। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसी जगहों पे आपका ये जेसन स्ट्रक्चर काम आता है। मींस MongoDB जेसन स्ट्रक्चर। Amazon MongoDB को एज अ कैशिंग DB यूज करता है। डू यू नो दैट? कैशिंग DB मतलब उसके सारे प्रोडक्ट्स, रिसेंटली व्यूज प्रोडक्ट्स यू माइट लाइक, जितनी भी चीजें व्यू होती हैं जो फटक से तुम्हारे सामने आती हैं, वो सब वो MongoDB में डाल के रखता है। Netflix आपका जेसन स्ट्रक्चर में वर्क करता है। उसके लिए चाहे वो MongoDB यूज करे या PostgreSDB यूज करे या कोई भी दूसरा NoSQL DB यूज करे, मींस जेसन स्ट्रक्चर यूज करेगा, करेक्ट? आप समझ में आ रहे हैं? हाँ, अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन बनानी पड़े तो कैन यू पुट अप एन आर्किटेक्चर एटलीस्ट फ्रॉम डेटाबेस साइड? यस, ओके।
चलो, आई गेस नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई नो सीक्वल, नॉट स्पेसिफिकली MongoDB, क्योंकि MongoDB मींस नो सीक्वल, सो वी शुड एम्फसाइज ऑन नो सीक्वल, क्योंकि RDBMS बोलेंगे तो RDBMS से Oracle का हो या RDBMS SQL सर्वर हो, इट्स वन एंड सेम थिंग, मेन थिंग इज RDBMS. सिमिलरली नो सीक्वल इज नो सीक्वल, चाहे वो MongoDB हो, चाहे वो PostgreSDB हो, चाहे वो कोई और DB हो, नो सीक्वल इज द स्ट्रक्चर और द डिजाइन पैटर्न. ओके, अब आते हैं Express.js पे क्विकली, 1 मिनट. अभी तक सारा बैकएंड कोड, सो फार ऑल बैकएंड कोड वेयर वी यूज्ड टू डेवलप. जब आप बैकएंड कोड की बात करते हो तो दिमाग में क्या आता है? अभी तक, नॉट लेटेस्ट, अभी तक. When you think of backend programming, what do you think? बोलो यार. We have 71 participant, minus me 70, minus 1 let's say, minus 2 Madhu ma'am, okay, 69, Sanjeev sir also like 68 now. So out of 68 I'm only getting answers from 2 or 3, and I know most of you know the answer. You can put it in the chat also. I can see people are putting the answer in the chat, which is good, but you can unmute yourself and you can speak also. So people are saying C, Java, correct? For previous example, people have given idea for eBay, Aadhaar, good. I like that idea. Yes, MongoDB वहाँ use हो सकता है. तो backend programming के लिए क्या दिमाग में आ रहा है आपके? Okay, C, Java, JavaScript, PHP, good. Yes, sir. Aadhaar is an excellent example of MongoDB, sir. क्यों नहीं? आधार, and मैं एक मिनट जरा वापस आता हूँ. आधार का, our country is going towards a digital platform, that you all know, right? Digital platform. हम लोग 140 करोड़ हैं. अगर बच्चे भी निकाल दें तो कम से कम 70-80 लाख तो होंगे जिनके आधार कार्ड बने होंगे, या नहीं? इतने तो होंगे. अगर 50 लाख भी हो, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर 50 लाख भी हो तो उस एप्लीकेशन को भी एक RDBMS संभाल नहीं सकता है, आधार जैसी एप्लीकेशन को. तो हमारे को ये अगर मतलब सपोज ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए, कॉन्सेप्ट लेके आए, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो क्या तुम लोग हैंडल कर सकते हो इस मीन स्टैक अप्रोच पे? कैन यू डिजाइन समथिंग लाइक दैट? Yes, sir. At least do you have an idea? Yeah. What it is, why it is, correct? बहुत बड़ी एग्जांपल है आधार का. एंड यू वोंट बिलीव, गोइंग फॉरवर्ड ये जो स्मार्ट सिटी का प्लान एक्चुअली ये कोविड-19 की वजह से बहुत स्लो हो गया. अदरवाइज जो हम स्मार्ट सिटीज की तरफ जा रहे हैं, यू विल सी सच थिंग्स, यू विल सी स्मार्ट डैशबोर्ड्स, जहां पर कुंभ जैसे मेले में, कुंभ फेयर में, यू वोंट बिलीव, if everything is right, we are going to put up our own dashboard over there where we can capture in real time, we can capture these many blacklisted people are there, or chain snatchers, or let's say thieves or pickpocketers are there, in today's Kumbh Mela, for example. We can capture these things. Very soon we are going to come up with such ideas. So ये ideas जो है ना, ये applications जो हैं जो बनी हुई हैं वो दोबारा से revamp हो रही हैं, जो नहीं बनी है उनके आइडियाज पुट अप हो रहे हैं. सो डोंट स्टॉप थिंकिंग. यू नेवर नो व्हाई आई एम रेजिंग दिस पॉइंट इज, यू नेवर नो तुम में से किसका आइडिया क्लिक कर जाए. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला कि जैसे जूम एप्लीकेशन है, ऐसी की एप्लीकेशन बनानी है. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? यस सर. आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने निकाला ऐसा टेंडर? यस सर. मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ वो टेंडर भरा है, स्टूडेंट्स के साथ भरा है. तो अगर वो मुझे मिलता है, मतलब हमारे को अगर मिलता है तो स्टूडेंट्स के साथ मिलके वो बनाऊंगा मैं. सो ये आइडियाज को रोको मत दिमाग में इसको और एक्सप्लोर करो. पब्लिक फोरम्स में इसको प्रमोट करो, पब्लिक फोरम में बोलो इनके बारे में, सो दैट पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू. ओके, दैट्स हाउ यू विल गेट द नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि जब बताओगे तो लोग आइडियाज देंगे. दैट इज द बेस्ट थिंग. तुम किसी से जाके पूछोगे टेल मी आधार एप्लीकेशन को मैं कैसे MongoDB में कन्वर्ट करूं, कोई नहीं बताएगा. तुम डिस्कशन स्टार्ट करो, हर कोई अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करता है. दैट इज हाउ आई लर्न. आई ऑलवेज बीन अ साइलेंट ऑब्जर्वर एंड अ लिसनर इन माई लाइफ. तो मैं क्या करता हूं, मैं आराम से बैठ के सुनता हूं, सबके सुनता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए नॉलेज. मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे चाहिए नॉलेज, तो मैं सबकी सुनता हूं. अब जो तुमने जिस बंदे ने जिस स्टूडेंट ने मुझे आइडियाज दिए हैं, अब मैंने सबके सुने, करेक्ट. यू नेवर नो, मैं तुम लोग आइडिया यूज करके किसी एप्लीकेशन में यूज करूं.
दैट्स माई आर्ट, राइट? सो इसीलिए नेवर ever stop any idea in your brain, just let it go. Okay, let it go in the sense means exposed towards the, you know, toward the people, towards the mob, in public forum, ताकि लोग उस पर डिस्कस करें. जब डिस्कस करेंगे और आइडियाज मिलेंगे. That's how you will come up with a solid platform. Okay, let's come back to the point. तो अभी तक हम जब बैकएंड कोड को देखते हैं, whenever we see a backend code, we think C, C++, Java, PHP, .NET is the max, right? But do you know all these you know, technologies are server side? That you know or not? These technologies are server side. अब एक क्वेश्चन आता है, what is server side? एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं server side का. What is server side? Server side means whenever I go for any request, जैसे मैंने एक सिंपल फेसबुक के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ कमेंट किया, नो कमेंट भी नहीं किया, लाइक किया. मैंने फेसबुक एप्लीकेशन में सिर्फ लाइक किया, कुछ पोस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ लाइक किया या फॉलो किया. तो सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या बोलती है कि इतने से काम के लिए भी, बिकॉज ब्राउजर कैन नॉट हैंडल और अंडरस्टैंड C, C++, Java, .NET, PHP, no. Browser can only understand JavaScript, HTML, CSS and XML. That's it. ये सिर्फ 4 चीजें ब्राउजर को पता होता है, चाहे मॉडर्न ब्राउजर हो चाहे ओल्डर ब्राउजर हो. ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, HTML, CSS, JavaScript and XML. ओके, अब मेरे को कुछ लाइक करना है, कमेंट करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है जिसके लिए मुझे डीबी के पास जाना है. आई नीड टू हिट डीबी. मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मुझे सर्वर पर जाना ही पड़ेगा. करेक्ट? सो विच मीन्स फॉर सिंपल ऑफ द सिंपल रिक्वेस्ट ऑल्सो विल गो टू सर्वर, और सर्वर पे प्रोसेस होगी, क्योंकि ब्राउजर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. ब्राउजर आपका PHP, C#, C++ समझता ही नहीं है. तो अगर आपने बैकएंड कोड, अगर आपकी वेब एप्लीकेशन .NET बेस्ड एप्लीकेशन है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, PHP बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ब्राउजर इनमें से किसी को नहीं समझता. तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज की, चाहे वो सिंपल लाइक बटन क्यों ना हो, आपने लाइक करना है एक पोस्ट को, तो उस पोस्ट की आईडी और आपका यू नो स्टेटस लाइक टू, ये 2 चीजें जो आपकी सर्वर पे जाएंगी. सर्वर इस कोड को, इस लॉजिक को प्रोसेस करेगा, क्योंकि सर्वर पे ही ये सब चीजें कंपाइल होती हैं, क्योंकि ये सर्वर साइड कंपाइलिंग लैंग्वेजेस हैं ये सब के सब. C, C++, Java, .NET, PHP, राइट? नॉट जावास्क्रिप्ट. तो सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे प्रोसेस होगा, कंपाइल होगा, सर्वर फिर इसको रेंडर करेगा HTML फॉर्मेट में, वापस लेके आएगा, सर्वर पे वापस आएगी HTML फॉर्मेट में, और तब जो है आपका हो जाएगा कि लाइक हो गया. अब इस प्रोसेस में ड्रॉबैक क्या है? कुछ भी प्रोसेसिंग हो, छोटे से छोटा काम भी हो, स्मॉलेस्ट ऑफ द टास्क हैज टू बी प्रोसेस एट द सर्वर साइड. तो हर बार आपकी हर एक चीज के लिए आपकी कॉल कहां जा रही है? सर्वर पे जा रही है. हर एक कॉल जो है सर्वर पे जा रही है. करेक्ट? विच मीन्स जब सर्वर पे जाएगी तो आपका इंटरनेट, योर इंटरनेट विल कम इनटू पिक्चर. मीन्स आपका इंटरनेट फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, बहुत स्लो हो सकता है, 3G 2G हो सकता है. करेक्ट? तो अब अगर यू नो हर रिक्वेस्ट अगर सर्वर पर जाएगी तो आपका क्या हो रहा है? आपका इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, आपका नेटवर्क कंज्यूम हो रहा है, आपका नेटवर्क के बीच में ब्रेक हो जाए, यू नो स्लो हो जाए, तो आपका प्रोसेसिंग हो जाएगी स्लो. एंड व्हाट यू विल सी? लोडिंग सिंपल, जैसे पुरानी एप्लीकेशन में होता था, जैसे पुरानी एप्लीकेशन में होता था. डू यू थिंक एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, जीमेल, करेक्ट, और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, लाइक और ये यू नो लाइक फीड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, गाना ऐप हो गया, ये जितने भी फीड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, राइट, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे एग्जिस्ट कर सकती हैं? डू यू थिंक? नो. ओके, डू यू हैव अ रियल टाइम एग्जांपल कि कौन सी एप्लीकेशन फेल हो गई फेसबुक से पहले? लो, हिंट भी दे दिया. Orkut. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सी, जब सोशल नेटवर्किंग की बात आती है, चिट चैट की बात आती है, तो सबको पता होता है. अगर कोई और एप्लीकेशन पूछूंगा तो दूसरी एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं पता होगी. करेक्ट? करेक्ट? ओके, लीव इट. तो ऑर्कुट बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है. क्या नहीं था ऑर्कुट के अंदर जो फेसबुक में है? करेक्ट? ऑर्कुट में भी वही काम करते थे जो फेसबुक में करते थे. और कमाल की बात देखो, सी द आई मीन मॉकरी ऑफ द सिचुएशन. ऑर्कुट भी सर्वर साइड बेस्ड एप्लीकेशन थी, मतलब .NET बेस्ड एप्लीकेशन थी. ऑर्कुट फेल हो गई. फेसबुक आई, फेसबुक भी PHP बेस्ड एप्लीकेशन है, PHP भी सर्वर साइड एप्लीकेशन ही है, लेकिन PHP इतना फास्ट क्यों है?
PHP अभी तक मार्केट से आउट क्यों नहीं हुआ, बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है. ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज सर्वर साइड एप्लीकेशंस फाइनली आपका इस तरह का हैवी ट्रैफिक या इतनी एक्टिविटी एक पेज पे हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि हर रिक्वेस्ट जो है जाती है सर्वर के पास, प्रोसेस होती है, वापस आती है. यही वजह था, दैट इज द रीजन कि ऑर्कुट जैसी एप्लीकेशन जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाई, राइट. या जो अपने पुरानी बैंक एप्लीकेशंस हैं, हैव यू एवर वंडर, जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं या जो पुरानी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं या जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं जिनमें जैसे पेमेंट गेटवेज हैं या जो गवर्नमेंट साइट्स हैं जहां पर बहुत इंटरेक्शन होता है, वो बहुत सिंपल क्यों बनाते हैं, बहुत सिंपल क्यों बनाते हैं, बिल्कुल लाइट, कुछ नहीं होता है उसमें, मरी हुई एप्लीकेशंस होती हैं, सो दैट उनमें कुछ भी हैवीनेस नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्वर साइड एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ सर्वर पे जाके प्रोसेस होगा. करेक्ट. तो पुरानी बैंकिंग साइट सारी सर्वर साइड एप्लीकेशंस थी. आज की एप्लीकेशन देखो, बैंक एप्लीकेशन देखो, सी एसबीआई को देख के कोई कह सकता है ये बैंकिंग डोमेन है, सॉरी ये गवर्नमेंट डोमेन है. एसबीआई की मोबाइल ऐप, एसबीआई की वेब एप्लीकेशन अगर आपने नहीं देखी हो, जस्ट गूगल पे सर्च मारना, कोई कह नहीं सकता. हाँ, योनो एसबीआई वाला, योनो एसबीआई, दैट्स अ मोबाइल ऐप, राइट. इतने कूल फीचर, इतने सारी एक्टिविटीज, इतनी इंटरेक्शन, ये सर्वर साइड पे पॉसिबल नहीं होती हैं. इतने सारे यूजर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं. नाउ यू जस्ट इमेजिन, अब एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे कॉलेज का ही, 30 सेकंड्स. ओके, तुम्हारे कॉलेज में लेट्स से एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल, करेक्ट. तुम सब में से कोई भी बुक्स लेके नहीं आया, तुम्हारी टीचर बोलती है कि ओके दिस इज अ मैथ्स सब्जेक्ट, गो गेट मैथ्स बुक, बिकॉज यू डोंट हैव द मैथ्स बुक विद यू, यू ऑल वेंट टू योर होम एंड केम बैक, करेक्ट. तो जब आप सबके सब बाहर जाओगे, करेक्ट, और सबके सब घर जाके जब वापस बुक्स लेके आओगे, तो सबका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट डिफरेंट होगा. यस और नो? यस सर. किसी का घर पास होगा, किसी का दूर होगा, राइट. करेक्ट. अच्छा, जब वापस आ रहे होंगे उस टाइम पे भी वी नेवर नो कि किसी को फ्रेंड मिल गया, वो वहां पर टाइम पास कर रहा है, राइट. किसी का मनी नहीं हुआ आने का, करेक्ट. किसी को रिटर्न का कुछ सीन ही नहीं हुआ कि भाई घर पे रुक गया, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, इतना टाइम लग गया कॉलेज से घर आने में कि अब वापस घर से कॉलेज आने के लिए टाइम ही नहीं बचा, बिकॉज बहुत दूर था. बहुत सारे रीजन होंगे, विच मीन्स सबका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट डिफरेंट है. ऐसे ही अगर हर सब्जेक्ट में हो तो मैथ्स के लिए भी सेम, जैसे फिजिक्स के लिए भी सेम, केमिस्ट्री के लिए भी सेम, कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम, हर सब्जेक्ट के लिए ये सेम सीन है. घर जा रहे हो, वहां से बुक्स लेके आ रहे हो. सो एक या दो स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, स्टिल मैनेजेबल. अगर पूरा कॉलेज ये काम करे, पूरा कॉलेज जहां 1000 स्टूडेंट्स हैं, इज इट अ गुड वर्किंग मॉडल? कैन अ कॉलेज एग्जिस्ट? कैन दिस बी अ प्रैक्टिकल सिनेरियो? नो सर. तो कॉलेज क्या बोलता है, स्कूल क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ. लाइब्रेरी से यूज करो. लाइब्रेरी से पहले यू कीप दोस बुक्स विद यू, नो? यस सर. You keep those books with you, correct? यस सर. बुक You keep that books with you. तो जब जिस सब्जेक्ट का वो है सेशन है, आपने बुक्स निकाली ऑन द स्पॉट और वहीं पर रीडिंग शुरू कर दी या स्टडी स्टार्ट कर दी. दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड. दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड. ओके, सो अब वापस टॉपिक पे आते हैं. एक्सप्रेस जेएस बहुत लाइट वेट है. एक्सप्रेस जेएस आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता रेंडरिंग में, करेक्ट. it is used for handling all your backend code, your APIs precisely, means you create APIs in Express.js, correct. और APIs भी कैसी? APIs which basically work over HTTPS, which means इस APIs को, जो APIs Express.js में बनेंगी या APIs जो Express.js में बनती हैं, you can consume those APIs through your mobile, through your your laptop, through your desktop, through any device, whichever device understand HTTPS can consume your APIs which is built in Express.js. तो जितनी मोबाइल एप्स हैं उसमें ये Express.js बहुत यूज होता है. फीड बेस्ड एप्लीकेशन है, मीन स्टैक एप्लीकेशन, मीन स्टैक टेक्नोलॉजीज बहुत यूज होती है मोबाइल एप्स में बेसिकली, करेक्ट. MongoDB लाइटर वेट है, Express.js API बन गई, लाइटर API बन गई, नो सर्वर साइड प्रोसेसिंग, करेक्ट, नो हैवी सर्वर साइड प्रोसेसिंग, करेक्ट. अब आते हैं एंगुलर पे, जो मेन पॉइंट है कि अभी आपकी एप्लीकेशन सर्वर साइड पे चल रही थी, A स्टैंड फॉर एंगुलर जेएस, ओके. इसकी जगह पे इसकी जगह पे React.js भी डाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा
MERN stack, MERN, MERN, R stand for React.js. तो AngularJS your front end, पहले फ्रंट एंड प्रोजेक्ट भी java.net में बनता था, ASPX पेजेस, JSPX पेजेस, करेक्ट, PHP बेस्ड एप्लीकेशन. तो ये एप्लीकेशन जैसे अभी बता रहा था आपको, ये सब एप्लीकेशन सर्वर पे चलती हैं, सर्वर बेस है, सब प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है. बट एंगुलर में जब एप्लीकेशन बनाते हो या रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाते हो या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन बनाते हो, तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपकी चलती है आपके ब्राउजर के अंदर. ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को समझता है और ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एप्लीकेशन बनाते हैं. ये बेसिकली जावा से फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, करेक्ट. ये तीन सबसे बेस्ट चल रहे हैं इस वक्त. तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बेसिकली क्रिएट, रन योर एप्लीकेशन. First of all, convert your application into JavaScript and make sure your JavaScript application will run in your browser. तो क्या मतलब हुआ इसका? आपकी बुक्स आपके पास हैं, आपके बैग में है, आपकी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में है, आपको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट. जब भी कुछ भी चाहिए विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कैंपस आपको वो चीज मिल जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट. You're keeping your books in your library, and if you think going to library also is too far, correct, it is time consuming, तो आप उन बुक्स को अपने ही क्लासरूम में रख लोगे. Can you tell me this term? What we call this term? फिर से रिपीट करता हूं. मैंने कहा हम सारी बुक्स अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, जैसे किसी ने आंसर किया था. By that point we keep all our books in library so that we don't need to go to our home and bring it, or to the market to bring it, right? It is there in the library. Whenever we want, we can take it from the library within university, inside your browser, correct? ब्राउजर में ही आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपकी बुक सारी आपकी यूनिवर्सिटी में ही है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सेम सिचुएशन. नाउ आई एम सेइंग if let's say we have too many users, too many students, तो लाइब्रेरी में भी बहुत हॉचपॉच हो गया है. बार बार लाइब्रेरी में जाना, बुक्स लेके आना, वहां भी फुटफॉल बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत टेंशन हो गई है, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है, करेक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? मैं हिंट भी दे रहा हूं. सो हमने क्या किया, जो हमारी सब्जेक्ट बुक्स हैं हमने उसको अपने क्लासरूम में रख लिया, सो दैट वी अवॉइड, एक बार लाइब्रेरी में गए, बुक्स ली और क्लासरूम में रख लिया. कैन यू टर्म दिस मैकेनिज्म? इट्स अ रियल टाइम एग्जांपल. कैन यू नेम दिस मैकेनिज्म? व्हाट वी कॉल इट? what caching. Absolutely correct. Caching. See, that is what I told you. You guys know what, correct? You know what. You just need to know why, and then automatically you will understand how. Correct? तुम्हें already पता है. I never expected कि ये सब चीजें तुम लोगों को पता होंगी. Trust me. But you already know all these things. Means first hurdle you already crossed. तुम already उस level पे पहुंच गए हो कि जहां से तुम्हें समझाया जा सके कि भाई ये क्यों जरूरी है. मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी कि भाई ये सब क्या है. तुम्हें ऑलरेडी पता है. तो कैशिंग. सो इस टेक्निक को हम आईटी में बोलते हैं कैशिंग. सो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार एपीआई को हिट करता हूं, सारी मूवीज जो हैं जो तुम्हारे इंटरेस्ट की हैं, रिमेंबर तुम अपना इंटरेस्ट शो करते हो. जब नेटफ्लिक्स में अकाउंट बनाते हो तो इंटरेस्ट शो करते हो, करेक्ट. फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो इंटरेस्ट शो करते हो कि मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें. तो हर बार तुम्हें जो नेटफ्लिक्स है वो ऑफर देता है कि ये क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो इस जॉनर में, तुम्हें एक्शन मूवी पसंद है, ये लो सारी एक्शन मूवीज. विच मीन्स जब मैं फर्स्ट टाइम लॉग इन करूंगा, मैं आपका इंटरेस्ट देखूंगा, आपका मतलब एपीआई आपका इंटरेस्ट देखेगी. एक बार एपीआई हिट करोगे, एपीआई एक बार में सारे आपके इंटरेस्ट वाली मूवीज लाके कैश में सेव कर देगी. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप कोई मूवी सर्च करोगे एक्शन मूवी, तो कॉल आपके एपीआई को नहीं जाएगी, कॉल जाएगी कैशिंग सर्वर को, और आपके कैश में से इमीडिएटली डेटा आ जाएगा. अब 5 साल पहले तक कैशिंग सर्वर होता था. स्ट्रिक्टली लास्ट 2 ईयर से हम NoSQL DB यूज करते हैं. जैसे आपका ये प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स और ये व्हाट यू कॉल इट, योर Amazon ई-कॉमर्स एप्लीकेशन यूजर्स, करेक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है, राइट? तो MongoDB हो गया, ExpressJS हो गया. एपीआई के लिए जो एपीआई कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी डिवाइस यूज कर सकता है. मतलब एक एपीआई बनानी है, एक एपीआई बनाई, मोबाइल ऐप भी उसी एपीआई को यूज कर रहा है, वेब एप्लीकेशन भी उसी एपीआई को यूज कर रही है. फिर आ गया एंगुलर आपका पूरा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, जो आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है सर्वर साइड रेंडरिंग की बजाय इंस्टेड ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग, विद द हेल्प ऑफ एंगुलर यू आर डूइंग क्लाइंट साइड रेंडरिंग. क्लाइंट साइड मींस क्लाइंट ब्राउजर.
पूरी एप्लीकेशन क्लाइंट ब्राउजर में है, सर्वर को कोई कॉल ही नहीं है। तो अगर सर्वर को कोई कॉल ही नहीं है तो सर्वर पर कॉल जाएगी कब? व्हेन डू यू थिंक सर्वर पे कॉल जाएगी? नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी मुझे सारी की सारी जो है पूरी एप्लीकेशन मेरी ब्राउजर पे चल रही है, नेटफ्लिक्स में या अमेजोन में, करेक्ट। मुझे सारे प्रोडक्ट्स भी मेरे को सारे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स यू माइट लाइक, ये सब दिख रहा है मुझे, तो मुझे एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, लेट मी जस्ट चेक हाउ अवेयर यू आर, राइट सर? जब मूवी पे क्लिक करेंगे, जब व्यू करेंगे, तब वो सर्वर से उठ के आएगी डायरेक्ट। मैं वो भी कैशिंग से ले लूंगा। और बोलो सर, जब कोई फर्दर कुछ नए अपडेट्स आएंगे या कुछ नई मूवी कंटेंट ऐड हो रहा है या गुड, मैं कोई नया, हाँ उसी पे आता हूँ, करेक्ट। मैं आई टेक दिस एग्जांपल ओनली, मैं कोई नया प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जो कैशिंग में नहीं है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, लेट्स से आईफोन 12, आई डोंट नो आईफोन 12 मार्केट में है या नहीं है, आई एम सॉरी। तो लेट्स से मैं अमेजोन में आईफोन 12 सर्च करता हूँ जो उसकी कैश में नहीं है, अब वो एपीआई को कॉल करेगा। नाउ Amazon एप्लीकेशन, द Amazon फ्रंट एंड एप्लीकेशन विल कॉल एपीआई, और एपीआई डीबी को कॉल करेगी, और क्या करेगी? अगेन स्मार्ट थिंग, जैसी डेटा मिला वो भी उठा के कैश कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम सपोज मैंने सर्च किया, मेरी वजह से आईफोन 12 का पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैश में आ गई, कैश सर्वर में आ गई। उसके बाद मेरे बाद अगर 1 मिलियन कॉल गई हैं आईफोन 12 के लिए, all 1 million call will be treated from that caching server, not from the DB or API. Can you imagine how cool this technology is, or these technologies are? तो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग का या फ्रंट एंड दिस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मैकेनिज्म, ये जो एंगुलर या रिएक्ट या Vue.js है, मतलब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो है, इनका फायदा क्या होता है, इनका बेनिफिट क्या है? सब कुछ आपका ब्राउजर पर है, सब कुछ ब्राउजर पर है। इवन आपके ब्राउजर में एक डेटाबेस भी होता है, यू नो दैट, IndexedDB। यस सर। Even you have a brilliant guys, brilliant, you all are awesome. So आपका ब्राउजर के अंदर डेटाबेस भी होता है, we call it IndexedDB। तो इतना डेटा तो आपका IndexedDB संभाल लेता है, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन आपके ब्राउजर पे चलती है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं या कंपनीज या ये न्यूज साइट्स कहती हैं कि आवर एप्लीकेशन इज ऑफलाइन एप्लीकेशन, यू कैन रन इन ऑफलाइन मोड आल्सो, करेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफलाइन मोड? ये वीडियोस, ये डेटा, ये कंटेंट, ये फीड, ये एपीआई से तो आता है, तो ऑफलाइन का क्या मतलब है? ऑफलाइन का मतलब है वो सब आपके, करेक्ट, वो सब आपके ब्राउजर पे सेव हो जाता है, लोकल सर्वर एक तरीके से। एब्सोल्युटली करेक्ट। IndexedDB आपका लोकल डेटाबेस, सब कुछ वहां सेव हो गया। तो आपका जितना भी पुराना है, मतलब जो भी कंटेंट अभी नेट डिस्कनेक्ट होने से पहले तक था, वो सब सेव है। yes, तो आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन चल रही है। ऑब्वियसली आपको नई वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, लाइव न्यूज नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं है, लाइव कनेक्शन नहीं है, बट जब जो भी अब तक हुआ है वो सब सेव हो गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, your client side scripting framework, client side JavaScript scripting framework, मतलब सारा का सारा प्रोजेक्ट आपका क्लाइंट ब्राउजर पे चलता है, करेक्ट। नो सर्वर साइड कॉल, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे मुझे बिलिंग करनी है Amazon सर्वर पे, अब मुझे फाइनली बिलिंग करनी है, मैंने सब कुछ सर्च कर लिया, नाउ आई एम गोइंग टू पे फॉर माय हेडफोन्स, बिल, अब एपीआई कॉल जाएगी और एक्चुअल बिलिंग होगी। नाउ जस्ट इमेजिन, मैंने कितनी सारी एपीआई कॉल्स जो है, मतलब एज ए प्रोग्रामर, एज एन Amazon प्रोग्रामर, how many API calls or backend calls or server calls I have stopped? I guess thousands of API calls मैंने simply save कर ली, और सिर्फ एक कॉल रह गई, वो भी कौन सी? बिल, that's it, बिल, that's it, बिल, right? And finally note server, brilliant again, super thing, super awesome thing. अभी तक जो आपको सर्वर पता है, मैं कौन कौन से सर्वर पता है? How many server you know? Yes sir, OYO, Northeast. Any other server? Java based server, .NET based server, any server you know? सर Amazon में तो यही यूज किए थे सर। नहीं, not Amazon. I mean, just जनरल टर्म में बताओ। I mean, क्या जैसे हर्ष इज सेइंग Tomcat, absolutely correct. Yeah. So students who are posting in the chat, I mean, don't take me wrong that I am not reading your chat. I am reading, and whenever I feel like it is important to highlight, I am calling those chat also. Okay, so don't feel like you are unattended and only people who are speaking, they are also getting highlighted. मैं आप सबकी chat देख रहा हूँ, और ये सब chat record भी हो रही है, correct? Don't worry. तो आप लोगों के suggestions बहुत अच्छे हैं, और most of your suggestions are involved
विद माय एग्जांपल्स, तो मैं इसलिए उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. जैसे अभी आदर्श ने बोला Oracle, I don't know who is this guy or girl, Dell. Just rename yourself a person who is Dell. So Apache server, Maven server, correct. PHP MyAdmin server, correct. Arushi said. So right. So in .NET we have IIS server, .NET IIS server. Java, in Java, Tomcat, Apache server, Maven. Maven is basically a build tool. It's not a server, if I'm not wrong. And then you have your PHP server, correct. Harsh is saying Glassfish server. So there are so many servers. Okay, there are so many servers, but they all are kind of, you know, paid. If not paid, correct, they are sticked और स्पेसिफिक टू सर्टेन टेक्नोलॉजीज. मतलब हर किसी सर्वर का कोई ना कोई कंस्टेंट है. जैसे आईएस सर्वर है, आईएस सर्वर का इशू क्या है कि वो सिर्फ डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन को ही फैसिलिटेट करेगा, सिर्फ डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन को ही चलाएगा, क्योंकि उसको उसी की नॉलेज है. टॉमकैट अपाचे जो है जनरल सर्वर है. जनरल सर्वर है मींस जनरल एप्लीकेशन चलाता है. आई एम नॉट श्योर हाई फाई एप्लीकेशन पे चलती है कि नहीं चलती है, करेक्ट. सो हर सर्वर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो अब एक सर्वर है कॉल्ड Node.js. इतना लाइट वेट और इतना ब्रिलियंट सर्वर है, करेक्ट, कि इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ओपन सोर्स एप्लीकेशन चलती है. आपकी पूरी मीन स्टैक एप्लीकेशन, फुल स्टैक एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन आपकी पूरी की पूरी नोड के ऊपर चलती है, राइट. नोड इज वेरी 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 लाइट सर्वर, वेरी लाइट सर्वर. और नॉट ओनली सर्वर, नोड ऑल्सो बिहेव लाइक अ पैकेज मैनेजर. आपको जितने भी पैकेजेस चाहिए, जो भी पैकेज मतलब लाइब्रेरीज मतलब लाइक योर लाइक फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप, jQuery, AngularJS, Vue.js, कुछ भी आपको डाउनलोड करना है, कुछ भी आपको डाउनलोड करना है अपने प्रोजेक्ट में, आप नोड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो. तो नोड आपका दो पर्पस को सॉल्व करता है. वन, इट बिहेव्स लाइक योर सर्वर, करेक्ट. It is a local development server also, and it can be a web server also for you, just like IIS, Tomcat, Apache, correct. And it acts like a package manager. तो ये बहुत लाइट सर्वर है. ये पूरी मीन स्टैक एप्लीकेशन को होस्ट करता है लोकली भी और ओवर वेब ऑल्सो. जनरली भी लोकल डेवलपमेंट के लिए हम नोड सर्वर यूज करते हैं, बहुत लाइट होता है. तुमको टॉमकैट, अपाचे, IIS सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कोई पे करने की जरूरत नहीं. इट इज ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, ये भी एक पॉइंट है वाई में this whole mean stack, all these cutting edge technologies and specifically this mean stack, it is completely open source. तुम्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है. ये भी रीजन है कि कंपनीज जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ भागती हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है. और इस केस में मीन स्टैक के केस में तो कॉस्ट कोई नहीं है, राइट, करेक्ट. सो दिस इज अ फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड आई वोंट से फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड. सो दिस इज the present stage of programming, and yes, it is going to be a future for very 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 long time, very long time. So is this Sandeep sir? Is this Sandeep sir? हाँ सर. नहीं, ये जिनकी वीडियो ऑन है संदीप सर. ये संदीप श्रीवास्तव. You are Sandeep Srivastava? No, I'm Sandeep. Okay. See, if you are not faculty member, please don't turn on your video, please. Okay. तो अब जल्दी से एक last 5 minutes. Okay. I won't take much of your time. Just like 5 minutes. Not only 5 minutes, just 2 minutes. एक project के बारे में discuss करते हैं, which I wanted to present in front of you. Okay. Which I thought we all can get together, build it. Okay. एंड इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट जो हमारा एक रेगुलर प्रोजेक्ट होता है कि भाई जैसे हमने कॉलेज में एक सिंपल इंटर्नशिप के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया. नो, नॉट लाइक दैट. अ प्रोजेक्ट, एक्चुअल क्लाइंट प्रोजेक्ट. एंड व्हेन आई से क्लाइंट प्रोजेक्ट मींस प्रोजेक्ट व्हिच यू कैन होस्ट वेयर यू विल अप्लाई ऑल द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. मतलब जहां पर आप जो है कोडिंग करोगे, जहां पर आप जो है एरर हैंडलिंग करोगे, आपको प्रेशर होगा, आपकी डेडलाइंस होंगी, आपके स्प्रिंट्स चलेंगे. स्प्रिंट्स मतलब स्प्रिंट प्रोग्रामिंग मतलब एजाइल मेथोडोलॉजी कि एक हफ्ते में या 1 वीक के अंदर इतना काम करना है, नेक्स्ट वीक के अंदर इतना काम करना है. मींस एक सिस्टमैटिक वे में आपको डिफरेंट आईटी टूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड, गिटलैब. आपने कभी सुना गिटलैब के बारे में? वेयर वी होस्ट अवर एप्लीकेशन, सॉरी, वेयर वी कीप अवर कोड. सो गिटलैब इज अ वर्जन कंट्रोल टूल जहां पर हम अपना कोड रखते हैं.
हम आईटी में अपना कोड पेन ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में, डिस्क में या ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालते हैं. हम गिटलैब यूज करते हैं, उसके थ्रू अपना कोड जो है पास ऑन करते हैं, शेयर करते हैं. करेक्ट? दैट्स हाउ प्रोग्रामर्स बेसिकली वर्क विद ईच अदर. तो सारे आईटी नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे. करेक्ट? ताकि आपको एक प्री टूर हो जाए कि कैसे आईटी में और इंडस्ट्री में वर्क करते हैं. करेक्ट? बट above all these things, project itself is very, very, very dashing and very noble. Let me just give me just 2 minutes to explain this project. Okay? Yeah, GitLab, GitHub. Yes, Kapil. GitLab, GitHub, and your Bitbucket, your one more is there, version control. These are version 1, sorry. These are your version control tools, basically, where you keep your repository. Repository means code. Okay. Point पर आते हैं, project पर आते हैं. So I have a project called VBuild Nation. Okay, VBuild Nation. It is a social networking site, a true social networking site, not like Facebook and all. True social networking site, where people are not going to meet each other just for the chit chat. Okay. जहां पर जो आपको आप फेसबुक वगैरह पे जो देखते हो, आप बोलते हो मुझे लाइक्स मिले, राइट? मुझे इस फोटो पे लाइक मिले, मुझे इस वीडियो पे लाइक मिले. सो इस एप्लीकेशन में आपको लाइक्स नहीं, क्लैप्स मिलेंगी. करेक्ट? जो एक्चुअली आपके गुड वर्क के लिए होंगी. व्हाट इज योर गुड वर्क? लेट्स डिस्कस. ओके. सो इन दिस एप्लीकेशन what we decided with 4 or 5 different unique tabs, means functionalities, or you can say features or modules. Correct? Whatever you want to call it. First one, food. So you go to vbuildnation.com, for example. You log in. You see in the menu called you see a tab called food in the menu. Food. You click on food. There what you see is you see a list of what you call ads. जहां पर लोगों ने डाला हुआ है कि hey, I have food for 20 people. One more carousel. Second carousel, I have food for 15 people. Second, donating. Correct. Not donating. Correct. Not donating. Idea is same, but I would not use this word. This is not like what do you call it? Like it's not like someone is begging and you're giving it. No, it's we build nation. Means we ourselves helping each other. Correct? We are not crying and creeping, in front of government and saying this is not happening, that is not happening. No, we ourselves is solving a problem of our own country or of our own people. Okay? Sharing. So correct, sharing, exactly, right word. Share. That is why I said we build nation. The name says we build nation. Okay. तो food tab पे click किया, तो ऐसे ads चल रही हैं. Correct? अब suppose मैं एक NGO which is a part of this application, a user of this application, because a lot of NGOs and big shots are going to associate with this application, and I have cherry on the top also at the end. So that's what I'm saying. Just listen to me for next 2 minutes. तो इस पे मैं एक NGO हूँ, ऐसे मेरे से बहुत सारे NGOs हैं. उन्होंने उन ads पे click किया, तो मैंने एक ad पे click किया, वहां पर मैंने उससे बात की, मतलब over the chat I'm talking. This is all going to happen technically. तो मैं अभी आपको business requirement बता रहा हूँ. Just like a business analyst in IT company, I am telling you a business requirement, correct? And you being at the listening side, creating a business requirement document in your mind. तो बिल्कुल जैसे IT में होता है, ऐसे ही करते हैं हम. Client requirement बताता है, तो मैं requirement बता रहा हूँ कि मैं as a NGO और as a social activist और as a social worker किसी एक ad पे click करूँगा और उससे chat करूँगा कि मैं एक NGO से belong करता हूँ, and nearby me I know underprivileged people. I know people who are underprivileged, and that might be interested in this I mean of your food. तो मैं वहाँ पर गया उस user से, correct, उससे food लिया, food for 20 people जो उसने ad डाली थी, और जाके underprivileged लोगों को दे दिया. किसने ad डाली? I have a party today, or I have a marriage today, I have my kid's birthday party, and I am expecting some food for 50 people will be left over. Correct? Restaurants. आपको पता है कितना खाना बर्बाद होता है रेस्टोरेंट्स में, खराब होता है रेस्टोरेंट्स में. ये रेस्टोरेंट्स जो हैं डेली का टाइप कर सकते हैं कि आज हमारे पास इतना खाना बचा है, एनजीओस गए, खाना उठाया, अंडर प्रिविलेज को दे दिया. उबर एसोसिएट होगा सोशल नॉर्म्स पे. वैसे भी जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एक सोशल एंगल होता है. करेक्ट? जैसे डेल के बिहाफ पे हम लोग, डिलॉयट के बिहाफ पे हम लोग बैंगलोर में नियर बाय एरियाज में जाते थे जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स या एरियाज होते थे. वहां हर संडे के संडे हम लोग एजुकेशन ड्राइव लगाते थे. तो सिमिलरली
ऊबर का एक सोशल एंगल हो सकता है कि ठीक है वो अपने कमर्शियल बिजनेस के साथ साथ हमारी भी हेल्प करेगा, मतलब वो भी ऐसे इस तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि उसका अपना एक नेटवर्क है। ऐसे करके बहुत सारे बिग शॉट्स इसके साथ एसोसिएट होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ नोबल प्रोजेक्ट, ग्लोबल आल्सो एंड नोबल आल्सो। ओके, सो लाइक दिस जितना भी so like this we will make sure through this application that no food anywhere in this whole country, correct, will get wasted, क्योंकि जिसके पास खाना है उसने पोस्ट कर दिया, जिसके पास फूड है, लेफ्ट ओवर फूड है, उसने पोस्ट कर दिया, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे मैरिज हॉल हो, करेक्ट, और जिसको चाहिए उसको वो फूड मिल गया, राइट? व्हाट इज इट गाइस, डिड यू लाइक द आइडिया? दिस इज जस्ट वन टाइम, यस सर, दिस इज जस्ट वन टाइम। अच्छा एक फैक्ट बताऊं, लेट मी जस्ट टेल यू अ फैक्ट। ग्रेट ब्रिटेन इतना खाना प्रोड्यूस नहीं करता जितना हम लोग एज एन इंडियन बर्बाद करते हैं। you know this fact? Some Yes, sir. 2.6, I am not exactly getting the figure, I guess in millions or what, I mean 2.6 million quintal or 2.6 thousand quintal, I don't know the exact figure, something like that, you can search on the Google also. This much we waste in the form of cooked and non-cooked form, रॉ फॉर्म में और कुक्ड फॉर्म में इतना खाना हम वेस्ट करते हैं जितना ग्रेट ब्रिटेन एक साल में बनाता भी नहीं है, उगाता भी नहीं है, पैदा भी नहीं करता, करेक्ट? सो अगर हम इसमें से अगर 10% भी कम कर सके थ्रू एप्लीकेशन, सो जस्ट इमेजिन you know what good application you have built in, correct? This is just one example. Next tab, education. So मैं अभी एक चैट पे क्वेश्चन है, मैं अभी लेता हूँ, just park it for just 1 minute. Education. So education के लिए anyways in Bangalore, I have seen in Bangalore, I'm not sure about other part of India, especially in Bangalore, every now and then we have a education drive to nearby areas or underprivileged students. We go to underprivileged students जहाँ हम Saturday Sunday को math, science, English इस तरह की classes लेते हैं. Yes, How about having this idea on at country level, where जैसे अभी हो रहा है, for example आपने एक एजुकेशन ड्राइव बनाई, आपने लिखा आई एम क्रिएटिंग एन एजुकेशन ड्राइव, आई एम टेकिंग अ मैथ सेशन एट दिस इन दिस प्लेस, आई एम टेकिंग अ मैथ सेशन, राइट, मैथ्स क्लास, और आपने प्लेस का नाम डाल दिया, लेट्स से प्लेस, लेट्स से बैंगलोर में डाल दिया आपने मारुथली फॉर एग्जांपल, राइट, दैट्स अ प्लेस, मारुथली गवर्नमेंट स्कूल फॉर एग्जांपल, और आपने एक ड्राइव बना दी, एजुकेशन ड्राइव बना दी, ये नोटिफिकेशन सबको चली गई जो भी उस मारुथली के एरिया के आसपास होंगे, करेक्ट, जो भी उस प्लेस के आसपास होंगे यूजर्स आपके एप्लीकेशन के, they can easily come and say, hey, I wanted to join your drive, so join the drive. I will teach science, I will teach English, you might need another maths teacher, I will teach maths also, correct? तो ऐसे करके क्या हो गया, one person has started a drive and हुआ क्या, अल्टीमेटली 5, 7, 10 लोग जो है उनका ग्रुप एक प्लेस पे जाता है और वहां जाके अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो है उनको पढ़ाता है। अब कोविड-19 के केस में मैं कहूंगा और अच्छा हो गया, लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 बेकार हो गया, बट मैं कहूंगा इसका बेनिफिट देखो, सी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, आप घर से बैठे ही, यू डोंट नीड टू गो टू प्लेस एंड डू इट, आप घर से बैठे ही पूरे दुनिया को पढ़ा सकते हो एजुकेशन में, यस और नो, करेक्ट? आज के टाइम में मोबाइल सबके पास है, जब लोग व्हाट्सएप पे वीडियो चैट कर सकते हैं तो पढ़ाना तो बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम है, करेक्ट? सो एजुकेशन ड्राइव। थर्ड वन, the most important one is the health drive. Just like food, education, another important one is health drive. और last वाला आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, I mean you will be amazed. Okay, so I call it 4 pillars of this application. Third one is health. Same thing, मैं डॉक्टर हूँ let's say, या मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैंने एक हेल्थ ड्राइव बनाया, I am creating a health drive for the COVID-19 checkup. ठीक है, मैंने ड्राइव बनाया, मैंने प्लेस का नाम लिखा, लेट्स से सेम थिंग, बैंगलोर, मारुथली, नियर लेट्स से ओल्ड एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल, तो वहां मैंने अपना हेल्थ ड्राइव के लिए मैं जा रहा हूँ, मैंने पोस्ट कर दिया, अनाउंस कर दिया, जो भी उस एरिया के आसपास हैं, जो भी नियर बाय हैं, करेक्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, नर्स, अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियंस, वो मेरी ड्राइव को ज्वाइन कर सकते हैं, और दे कैन क्रिएट देयर ओन ड्राइव आल्सो, दैट इज आल्सो ओके। I mean that's how you will see millions and thousands and millions of people will create their own drive and they will join others drive as well. और वहां जाके अपना एक कैंप लगाया, चाहे उसमें ब्लड डोनेट का सीन चल रहा है, चाहे उसमें चेकअप का सीन चल रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड नो मनी इन्वॉल्व इन इट। द बिगेस्ट बेनिफिट of this application and why I'm saying this application will be noble and successful
no matter who is involved in this application or who is not. The biggest point is इसमें money कहीं involved नहीं है. No money. You are sharing. There's no begging. There's no what do you call it? आप कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो. You're not, you know, what do you call it? You're not showing yourself that I'm superior or someone is inferior. No, we are sharing. We are building the nation. तो ये था health drive. Okay. अभी तक ये 3 ड्राइव कैसे लगे? अभी तक ये 3 टाइप कैसे लगे? What do you say about this project? Yes, sir. Just think about the technical part. I mean, अगर इसका noble part अगर side कर दो, let's say someone is not interested in, let's say this business related, you know, stuff, or the idea of this project. Okay, people are there, right? They're not into, let's say, sharing, or they're not into this thought process. I'm fine with it. Think from technical perspective. How many technical things you will get to learn in this project? जैसे coding में क्या आ गया? Front end programming, back end programming, deployment, DB, database structure. आपको आइडिया है कितना बढ़िया database structure होना चाहिए इसका? जैसे अभी कोई आधार बोल रहा था, ये आधार से कम होगा? When people will get to know about this application, millions of people are going to join. आप कैसे handle करोगे इसको? Architecture. Above all, technically what you will understand, architecture. मैंने 15 साल में सीखी है. आप एटलीस्ट 20-25% तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीख जाओगे. Architecture, because you will be doing that, not me. I mean, I will be helping you. Sorry, I will be helping you, but you will be doing it, right? Not me. So architecture, correct? So अभी तक ये 3 टाइप थे. Now see the fourth one, the fourth pillar, the beautiful one, society. इस सोसाइटी टैब में या फीचर में या फंक्शनलिटी में व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज 2 सेक्शंस. सोसाइटी आई हैव, सोसाइटी आई नीड. ओके, सोसाइटी आई हैव, सोसाइटी आई नीड. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक लाइव एग्जांपल बताता हूं. अभी तक आपने अपनी मेल आईडी पे देखा होगा ना, some mails you used to get and say, hey, this guy is suffering from cancer, need money. Correct? Have you seen such mails? Change.org type. Whatever. Let's not take a name, but have you seen those mails? Yes, sir. जहाँ पर मनी मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक? Right? So we are not going to ask for money. I mean, we means best part is there is no we. When this application will be launched, it will be driven by people. तो इसमें money का कोई सीन ही नहीं है. Let's say someone in the village is not able to construct his house, for example. So NGO आएगा हमारी साइट पर, वहां पर सोशल टैब पे क्लिक करेगा, वहां होगा सोसाइटी आई नीड. सो सोसाइटी आई नीड पर वो अपनी लिस्ट बताएगा कि मुझे क्या चाहिए. मुझे सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो 1 by 1 एक्सप्लेन कर देगा. करेक्ट? एंड व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल गिव, राइट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डायरेक्टली to the NGOs. This is just an example, to the NGOs, right? That NGO will make sure that NGO will build a house for that person. Correct? Like this, whatever you have on the whatever you have with you, what you can give to society. You will go to section called society I have, and you can post over there. This is society I have. What I have? I have books, I have bricks, I have construction material, I have bike, I have car. Whatever you can give to society, which means whatever you see it is not useful for me and I wanted to give it to society. So you can list over there. And another tab where we say society I need. There a person can post, hey society, I need books for my entrance exam. Which entrance exam? Maybe like say MBA entrance exam, or IIT entrance exam, or any kind of competitive entrance exam. So I need book. Usually these books used to be costly, very costly. Correct? So whatever society need, they can post society I need this, I need this, I need this, I need this. Whatever society has, society means you have, you can list, I have this, I have this, I have this, I have this. So whoever demands are matching. For example, I need a book. I say society I need, let's say 12th mathematics books, and someone is having it, so it will show the relation. So 5 people are having 12th mathematics book for me. Correct? I can contact to anyone out of it. Anyone out of it. Whoever is nearby me, correct? I can get a book from him or her. What do you say? What do you say, guys? Isn't it awesome functionality? Yes, and a noble one?
where the complete application is driven by people, and it's a noble project, and it's too much technical. And what we are expecting is a mobile app and a web portal. ये mobile app पर भी चले और web portal पर भी चले, मतलब as a web application and a mobile portal both. So that is what, you know, is the initial phase of the project, and it's going to grow, you know, like anything. These are just first 4 functionalities what we have for VBuild Nation, but we are adding, you know, we are going to add more functionality, like separate blood donation camps, for example, or soldier or talent. In the soldier, all the soldiers' family who are in need can register and directly ask for help. And whoever wants to help, they can directly help soldiers' family. They don't need to pay to, you know, the website or administration. And just like you know, fundraising companies, right? What they say, we need 20 lakh rupees to, you know, operate this guy. This guy is suffering from cancer. We need 20 lakh rupees. So people used to pay to such organization. Then such organization take their cuts and, you know, take their cut and then give money to, you know, hospitals and all. No, that is not what we're going to do. As I said, someone is in need. Let's say soldier's family is in need. A person who wants to pay or want to help, directly go. I mean, directly take the bank detail or whatever. Directly meet, take you know, bank account detail, Paytm, Google Pay, whatever, and pay them directly. Right? All NGOs are going to you know, get associated with this project. सारे NGOs इसके साथ जुड़ेंगे, big shots इसके साथ जुड़ेंगे. You will see celebrities also, you know, at some time, celebrities also will get associated with this app. And eventually, one of my student, Pranshu Shukla, he is in TCS, and he has done a lot of hackathon at national level. Okay, so he has already, you know, got project last year for one of the hackathon he did, correct, from Honorable Prime Minister Modi ji, and that is what he has proposed, that once you finish this project, correct, if you even finish your food and education drive also, I can project it. He said he can project it to the authorities, where you know, this project can be awarded with the with the prize in the sense means at least people at the higher level will acknowledge such application, right? So it's completely novel project, and I want that students only should be handling this one, because it is a win-win situation. Project itself is novel, plus the kind of technology you will be using, that also is latest, and we are going to deploy it in AWS. So we'll create a project, develop the project in MeanStack, and deploy it in AWS. So everything is latest, everything is fresh, no copy paste stuff, correct? This idea itself, if I'm not wrong, you never heard it before. Have you? Guys, इससे पहले ये आइडिया सुना था किसी ने? Yes, no, anything? क्या बोलते हैं? Hello? Right? So yeah, so that's it from my side. That's all I have. तो यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि ऐसा अगर प्रोजेक्ट आप मेरे साथ करते हैं, तो I will transfer all my knowledge, what I acquired, to you, make you a skilled resource. I'm just giving you the points, just concluding the gist of this whole meeting, this webinar. अगर आप ये project ऐसा noble project मेरे साथ मेरे अंदर करते हैं, so I will transfer all my knowledge to you, make you a skilled resource, correct? Make sure you will work in latest technologies. I'll make sure you will be a UI developer. You will be working UI. You will be working in DB, backend, server, you know, AWS, correct? I'll make sure you will get all the latest stuff what we use in IT. Above all, I'll make sure that you will become a good architect also, because if you are a good architect of an application, correct? अगर आप architecture अच्छा बनाते हो, तो programming भी अच्छी करोगे. इसका बहुत simple सा, you know, फंडा है, क्योंकि आपने जब architecture बनाया अच्छे से, तो आपको पूरी application clear होगी.
कि एप्लीकेशन कैसे बनेगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या वर्कफ्लोज होंगे, सब कुछ। तो अगर आपने आर्किटेक्चर अच्छे से बनाया, सो प्रोग्रामिंग भी आप बहुत अच्छे से करोगे, प्रोफेशनली करोगे। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जहां पर आप ये पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे। एंड दिस इज नॉट अ लाइफ, एंड दिस इज नॉट अ सैम्पल प्रोजेक्ट और कॉलेज प्रोजेक्ट, इट्स अ लाइव प्रोजेक्ट। इट्स गोइंग टू बी होस्टेड ऑन डोमेन कॉल्ड webuildnation.in, करेक्ट। और ये लाइव प्रोजेक्ट होगा जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, करेक्ट, जिसके बिहाफ पे आप स्किल्ड रिसोर्स बनोगे। आपको एचआर से, इवन लॉन्गर टर्म आपको एचआर से कॉल्स आएंगी, करेक्ट, बिकॉज यू विल नॉट बी अ फ्रेशर, you will not be a what do you call it, inexperienced. After this project you will be a skilled resource, and you have an experience, you will be having an experience of working in the latest technologies. Now, that's it for my side. I concluded this webinar. Sure, so sure, I'll stop my screen share, no problem. One second. So how can we join? Just 1 second. Stop the screen share. Yes, I stopped the screen share. Students, please turn on your video so that I can take a snapshot. Yeah, please, look decent, okay, be in good posture. Only few students, please turn on your video. Please, all of you, I'll put it in gallery mode. Yeah, Sanjeev, you can take this screenshot, no issue. Actually, so many students have not opened the video, so why we are waiting for that? Yes, sir. Their name is showing here. yeah. संदीप सर, Yes. सर आप भी ले लेना जरा उधर। Okay. Okay, thank you so much, Ajay sir, for your Thank you. informative session. Thank you so much, team. And this is a very brilliant and very informative crowd, I must say. They know lot of things. I mean, in what part they're absolutely spot on. I hope I able to transfer some knowledge that what is the importance of why and how you should exactly do the things, right? I hope I'm able to show you the right direction, that you should go into the downstream, right, not upstream, right? I hope you like today's session. Thank you so much, guys. Looking forward to work with you guys. Do we have Madhu ma'am? Do we have Madhu ma'am? Madhu ma'am? I guess. Yes. She's there. Okay. Can we then close the session? If Madhu ma'am wants to say something, I mean, I am just waiting for her. So otherwise we can, I think Madhu ma'am, she's busy. Yeah, ma'am is coming. Okay. She's coming. Hello. Yeah, hi ma'am. No, I'm here only. Yeah. Hi. I was actually how are waiting you? for you. Yeah, all good, ma'am. All good. Yeah. So Yes, I was how the waiting. session, मैंने ma'am? कहा जब wrap up करो that. हाँ, कोई बात नहीं. it was थोड़ा very सा good. stretch हो गया. But I wanted कोई बात to नहीं, no give that issues. information. Yeah. No issues. If it is going in a right direction, so Yep. it's good. Definitely, students have gained a lot many things, and always they are having in their mind that what they have to do. So, which database they have to use? What is Yep. the difference between Yes. different databases? Correct. Though through your session, my role is going to be over. You said that no one is hiring in the C++, so मेरा subject अब बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं. I have to put lot of efforts on that. Right? मैम मैं क्या करूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, Hello? मतलब राइट. हाँ वही तो, but अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना Yes. क्लास चलाने के लिए. Yeah. Right, but no issues. I agree. But But it C, was C++, really wonderful no, no, session. no. But C is the base. So आप बेस को तो डिनाई नहीं कर सकते ना, तो बेस तो आपको चाहिए.
Yes, yes. You need a base. You cannot. नहीं, हम हाँ, तो डिनाई नहीं कर पाएंगे, हम डिनाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो ये हमारी बंदर सेना है ना, इसको समझ में नहीं आती है वाली बात। बिना बेस के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो आप लड़ाई क्या लड़ोगे? तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है तो लड़ाई क्या लड़ोगे? सो यस, द C++ base is important. Yes. So I have to put off lot of efforts when they will be coming to my class. Correct. Right? But no issues. I accept this challenge. Right. Great. And Very good. thank you so much for sparing your valuable time and guiding them. Thanks, and we'll definitely connect all those students who are really interested to work with you or would like to have guidance from your side. So we'll take a consent from the student, or you can also connect. We'll share you all the students. Absolutely. Right. Students are also here right now. They are listening me. We still have 48. Okay. No issues. Whosoever is available, and if you are really interested to do something on a live projects and needs any guidance, connect with the sir. Sir can share share your email ID, please. Sure. So you just share your email ID. If they will be having any further guidance from your side, they will be connected to you. So the sheet which you will be sharing with us, no? So can we send a mail to that? Definitely. Right? Definitely. Correct. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. And it is really our pleasure to have your wonderful time and wonderful session. And definitely will bother you again in future. Sure. I am ready. I am absolutely ready. Okay. Thank you so much, team. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Thank you all the faculty members. Thank you students for your patience listening. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye. Okay, bye. Thank you, madam.